Karan, pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Tool Guru. Let's compete. Today, I will discuss child development and pedagogy. It is part 1. In this part, I will discuss 50 multiple choice questions and also briefly explain certain theories. First one, I will discuss Jean Piaget's theory of cognitive development. Second one, Lev Vygotski's socio-cultural theory of cognitive development. Third one, Erik Erikson's psychosocial development theory. Fourth one, Albert Bandura's social learning theory. Fifth one, types of learning disabilities. So all 5 things I will discuss in a briefly manner, and also I will discuss 50 multiple choice questions. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. This part is very useful for different exams like principal and vice principal exam, central teachers eligibility test, and different teachers exam in different states, similarly UGC NET. So definitely this session would be interesting one. In patient manner you listen the video, and you can get good questions, and also you must have knowledge about different theories. So my friends, follow my Facebook page, same Asit Government Tool Guru, and my WhatsApp number is there, 8327782034. If any queries there also, you can contact with me in my WhatsApp number. Okay, now I am going to discuss briefly different theories and also 50 multiple choice questions. First one, I will discuss Jean Piaget's theory of cognitive development. Jean Piaget emphasized on cognitive development. So 4 key stages are there, right? 4 key stages. First one, sensory motor stage, 0 to 2 years. Infants learn through senses and actions and developing object permanence. इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. Infants learn through senses. It means different senses like smell, touch, it means taste, hearing. Okay, from these actually senses, actually the child learn and do actions. Object permanence क्या है? Suppose the person hide the object under the blanket. Any toy, actually the person hide the toy under the blanket. तो जो चाइल्ड ये सोचता है कि वो टॉय जो है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस रिलेटेड परमानेंटली वो एग्जिस्ट है, तो वो ही थिंक दैट ही कैन फाइंड द टॉय. सो इन पोस्टरिंग टाइम ही सर्च इट एंड ऑल्सो फाइंड द टॉय अंडर द ब्लैंकेट. सो वो चाइल्ड ये सोचता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो उसका जो एग्जिस्ट है वो परमानेंट है. ठीक है, ये जो फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, ये 0 to 2 years है. नेक्स्ट वन, प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेकेंड स्टेज, इट इज 2 to 7 years. जो एज ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है. तो टोडलर्स यूज सिंबल्स, लैंग्वेज, प्रिटेंड प्ले, बट थिंक इगोसेंट्रिकली एंड लैक लॉजिकल रीजनिंग. इसमें वो कुछ जो टोडलर है 2 to 7 years, वो सिंबल्स ज़्यादातर यूज करता है. इगोसेंट्रिकली वो ये सोचता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसके लिए ही है. सो द चाइल्ड थिंक दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली मेड ओनली फॉर हिम. सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ. वो ये सोच लेता है कि सन एंड मून फॉलोड हिम, राइट. सो वो ये सोचता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर देयर, different people actually they think differently about different objects, but वो ये नहीं सोचता है कि वो ये सोचता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसके लिए है. तो वो इगोसेंट्रिक है और यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग एक्चुअली मिसिंग है. ये जो कंजर्वेशन है वो कंजर्वेशन, सपोज आप डिफरेंट ग्लासेस ले जाइए, डिफरेंट शेप ऑफ ग्लासेस, सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर डालिए. एक लॉन्ग ग्लास नैरो वन और एक स्मॉल ग्लास ले लीजिए, वो थोड़ा वाइड ग्लास, सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर है, मगर यहाँ पर वो उसको ऑब्जर्व नहीं करता है. वो बोलता है कि जो सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर 2 ग्लास में है, एक नैरो लॉन्ग है और एक वाइड स्मॉल है, मगर वो ये सोचता है कि जो नैरो लॉन्ग है उसमें ज़्यादा वाटर है.
तो इट मीन्स जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो कंजर्वेशन को ग्रास्पिंग नहीं करता है, उसके पास लॉजिकल रीजनिंग पावर नहीं होता है इसी केस में, इगोसेंट्रिक एक्चुअली हिज और हर आइडियाज आर वेरी इगोसेंट्रिक वन, ठीक है, और वो सिंबल्स, ज्यादातर सिंबल्स यूज करता है। थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर्स। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कंजर्वेशन, चाइल्ड ग्रास्प कंजर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेम में जो एग्जांपल अभी दिया था, सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर आप ले जाइए, एक नैरो ग्लास, लॉन्ग नैरो ग्लास लीजिए और एक स्मॉल वाइड ग्लास लीजिए, और वो डिटेक्ट करता है कि दोनों एक्चुअली शेप अलग है, ग्लास का शेप अलग है मगर वॉल्यूम ऑफ वाटर सेम है। तो उसका जो कंजर्वेशन वो ग्रास्पिंग कर लेता है, कॉज एंड इफेक्ट, उसका जो लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पर डेवलप होता है, लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है, ग्रास्पिंग, कंजर्वेशन, कॉज एंड इफेक्ट, एंड उसका जो लॉजिकल थिंकिंग पावर वो भी डेवलप होता है इस स्टेज में। और ये जो स्टेज है 7 to 11 ईयर से, ठीक है। फोर्थ स्टेज जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12+ ईयर्स। बेसिकली जो एडोलेसेंट्स डेवलप एब्स्ट्रैक्ट मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज, हाइपोथेटिकल एंड साइंटिफिक रीजनिंग। तो हाइपोथेटिकल, जैसे वो हाइपोथेटिकल को मैं समझा देता हूं, जैसे a+b² हम बोलते हैं कि a² + b² + 2ab। ओके, हम राइट साइड में आएंगे, राइट साइड से हम लेफ्ट को प्रूव करेंगे। यहां पर हम सोच रहे a+b² a² + b² + 2ab, मगर वो चाइल्ड क्या करता है, राइट साइड को वो न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करता है, जैसे उसको फाइंडिंग मिलेगा a+b²। वो यहां पर क्या करता है, a² + b² को कर देता है a+b² - 2ab, सेम थिंग हो गया, देन +2ab। सो अभी मिल गया ना a+b²। तो ऐसे ये जो हाइपोथेटिकल होता है और साइंटिफिक रीजनिंग, ये सब डेवलप हो जाता है फॉर्मल स्टेज में, ठीक है। ये 4 स्टेजेस है, सेंसोरी and pre-operational, next one concrete operational and fourth one formal operational stage। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर एक्चुअली प्याजे एम्फसाइज किया है। एक है असिमिलेशन। असिमिलेशन क्या है, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है, स्कीमा मीन्स एक मेंटल स्ट्रक्चर है, ये एक क्या है, एक मेंटल स्ट्रक्चर है। तो ये जो असिमिलेशन है, कोई न्यू इन्फो जाकर वो एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड हो जाता है, ठीक है। सपोज एग्जिस्टिंग स्कीमा क्या है, जैसे डॉग है, उसका 4 लेग्स है और 1 जैसे टेल है, और बाकी वो इसमें क्या है, जब वो चाइल्ड कैट को देखता है वो समझ लेता है उसका भी 4 लेग्स है 1 टेल है, तो उसको डॉग के साथ वो असिमिलेट कर देता है, ठीक है। तो ये जो डॉग वो एग्जिस्टिंग स्कीमा में था, अभी वो कैट को देखा और कैट को ये समझा कि ये डॉग है, क्योंकि डॉग जैसा सिमिलरिटी कैट में है। क्या सिमिलरिटी ना, डॉग का 4 लेग्स है 1 टेल है, और ये कैट भी 4 लेग्स 1 टेल है। वो तो असिमिलेशन वही है, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें न्यू इन्फो को वो ऐड कर देता है, ठीक है। और एक टर्म है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या है, एडजस्टिंग स्कीमास फॉर न्यू इन्फो। तो उसमें क्या है, जैसे अभी हम ये देखा ना कि जैसे असिमिलेशन में डॉग और कैट, जैसे फर्स्ट एग्जिस्टिंग स्कीमा में डॉग था, उसका 4 लेग्स 1 टेल था, तो वो कैट को सोचता था, जब कैट को देखता था वो ये सोचता था कि ये डॉग है, ठीक है कि नहीं, तो क्योंकि कैट का 4 लेग्स है 1 टेल है। तो इसमें क्या है, अकोमोडेशन केस में क्या है, वो इन दोनों में डिफरेंस को डिटेक्ट कर लेता है कि यस दोनों का 4 लेग्स 1 टेल है, मगर वो दोनों जो एनिमल्स है वो डिफरेंट है, उनका जो शेप साइज जो होता है वो डिफरेंट होता है, फेशियल अपीयरेंस, शेप साइज डिफरेंट होता है। तो वही अकोमोडेशन, वो जो एडजस्टिंग स्कीमा को वो मेंटल स्ट्रक्चर को एडजस्ट करता है न्यू इन्फो को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो हिज वर्क हाईलाइट्स हाउ कॉग्निटिव एबिलिटीज evolve biologically while interacting with the environment। तो एक बायोलॉजिकल मैचुरेशन को एम्फसाइज किया है, जैसे 4 स्टेजेस है, जैसे 0 to 2 ईयर्स सेंसरी मोटर स्टेज, कि प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर्स, कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11, 10 फॉर्मल। तो इसे बायोलॉजिकल मैचुरेशन से एक्चुअली
जो मेंटल डेवलपमेंट होता है। बायोलॉजिकल मैचुरेशन लीड्स टू मेंटल डेवलपमेंट, ये एक्चुअली प्याजे एम्फसाइज किया है। ठीक है, मैं थोड़ा कंसाइजली उसको एक्सप्लेन किया। अभी उसके ऊपर हम 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अकॉर्डिंग टू प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑकर्स थ्रू सोशल इमिटेशन, बायोलॉजिकल मैचुरेशन, द इंट्रैक्शन ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। तो इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बायोलॉजिकल। नहीं, इसमें जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1 एक्चुअली सी है। ठीक है, क्वेश्चन द इंट्रैक्शन ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। ओके, द इंट्रैक्शन ऑफ मैचुरेशन, मैचुरेशन मींस बायोलॉजिकल मैचुरेशन। बायोलॉजिकल मैचुरेशन क्या है, 4 स्टेजेस है एज ग्रुप के हिसाब से। ठीक है, तो जब वो मैच्योर होता है, जैसे वो आप देखा होगा कि प्री ऑपरेशनल से जब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को आ जाता है, वहां पर वो कॉन्क्रीट ऑपरेशन, वो प्री ऑपरेशनल में कंजर्वेशन को ग्रास्पिंग नहीं कर पाता था, मगर वो जब शिफ्ट हो जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को, वो कंजर्वेशन को ग्रास्पिंग करता है। उसमें लॉजिकल रीजनिंग नहीं था प्री ऑपरेशनल में, मगर जब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो जाता है। तो ये जो बायोलॉजिकल मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, मैं वही बताया कि बायोलॉजिकल मैचुरेशन लीड्स टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो मैचुरेशन के हिसाब से जो मेंटल स्ट्रक्चर वो डेवलप होता जाता है और उसमें उसका लर्निंग प्रमोशन होता है। तो इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक बताया था ऑब्जेक्ट परमानेंस इज ए की माइलस्टोन इन व्हिच स्टेज। ऑब्जेक्ट परमानेंस एक्चुअली मैं बताया था कि सेंसरी मोटर, जो 0 to 2 ईयर्स फर्स्ट स्टेज होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, वो ये सोचता है कि चाइल्ड ये सोचता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो परमानेंट है। सपोज वो ऑब्जेक्ट मिसिंग हो जाता है, सपोज आप कंबल के नीचे टॉय को छुपा दिया और उसको नहीं मिल रहा है, मगर वो ये सोचता है कि मिल जाएगा उसको क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंट है, और वो ढूंढता रहता है, और कुछ दिन के बाद क्या है, वो कंबल के नीचे उसको मिल जाता है। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज है, जो जो 0 to 2 ईयर्स, वो through senses actually he learn something. Okay, so he know about the environment only through senses. तो ये सेंसरी मोटर स्टेज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ए चाइल्ड हु थिंक्स ए टॉल नैरो ग्लास होल्ड्स मोर वाटर देन ए शॉर्ट वाइड 1 lakhs। सो ये जैसे सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर है, मगर ये जो ग्लास है ये थोड़ा नैरो है, और एक स्मॉल स्मॉल ग्लास है मगर वाइडर है, मगर दोनों में वॉल्यूम सेम है, दोनों में वॉल्यूम ऑफ वाटर सेम है। यही तो कंजर्वेशन है, ओनली एक नैरो टॉल है और एक वाइड स्मॉल है, मगर वॉल्यूम ऑफ वाटर सेम है। तो मगर ये इसको ग्रास्पिंग नहीं कर पाता है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है उसमें वो ग्रास्पिंग नहीं कर पाता है कंजर्वेशन को, मगर वो जब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज है 7 to 11 ईयर्स, उसमें वो ग्रास्पिंग कर पाता है कि यस ये नैरो लॉन्ग टॉल ग्लास है और एक स्मॉल वाइडर ग्लास है, मगर दोनों में वॉल्यूम ऑफ वाटर सेम है। तो ये रिलेटेड टू कंजर्वेशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो कंजर्वेशन को वो किस स्टेज में डिटेक्ट कर लेता है, 3rd स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। उसका एज ग्रुप जो है 7 to 11 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, एक आ गया ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हिच स्टेज। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, वो ईगोसेंट्रिज्म प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज एज ग्रुप होता है 2 to 7 ईयर्स। ईगोसेंट्रिज्म एक्चुअली वो ये सोचता है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स अर्थ में है वो उसके लिए बनाया गया है। द चाइल्ड थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स ओनली मेड फॉर हिम। तो वो सोचता है कि वो चाइल्ड ये सोचता है कि मैं जिस तरीके से सोचता हूं कि ऑब्जेक्ट यही है, उस तरीके से सब उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो वो ये तो यही जो सोच है वो ईगोसेंट्रिज्म सोच है, और वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो कंजर्वेशन को ग्रास्पिंग नहीं कर पाता है, उसमें लॉजिकल रीजनिंग डेवलप नहीं हुआ है, और वो ईगोसेंट्रिक है। वो ये सोचता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये 2 to 7 ईयर्स प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग इज ए फीचर ऑफ, मैं बताया था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12+ एज ग्रुप में। अभी एक एग्जांपल भी दिया था, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो डिफरेंट एंगल में
वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, डिफरेंट एंगल में वो एक साइंटिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में सोचता है डिफरेंट एंगल में, ठीक है। तो ये सब डेवलप हो जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 12+ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को चलेंगे। असिमिलेशन में बताया था, असिमिलेशन क्या है, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है, जो एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर है, उसमें न्यू इन्फो ऐड होता है, वही असिमिलेशन। कोई न्यू थिंग जाकर एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड होता है। तो इसमें असिमिलेशन रिफर्स टू चेंजिंग existing schemas to fit new information, interpreting new experiences using existing schemas, balancing between old and new knowledge, none of the above. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंटरप्रेटिंग न्यू एक्सपीरियंसेस यूजिंग एग्जिस्टिंग स्कीमाज। जैसे मैं बताया था कि डॉग के बारे में सोचता है, उसका 4 लेग्स है और 1 टेल है, और वो जो कैट को जब देखता है वो डॉग के साथ सिमिलर सोचता है कि कैट को जब देखता है वो सोचता है कि ये डॉग है, क्योंकि उसका भी 4 लेग है और 1 टेल है। तो इस तरीके का सोच असिमिलेशन है, कोई न्यू इन्फो जाकर वो जब एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड होता है, वही है वो जो है यही असिमिलेशन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को चल लेंगे। ए चाइल्ड प्रिटेंडिंग ए बनाना इज ए फोन, को बनाना को डेमोन्स्ट्रेट करता है कि बनाना को वो फोन की तरह डेमोन्स्ट्रेट करता है, ठीक है। तो कंजर्वेशन, सिंबॉलिक प्ले, सीरियसन, रिवर्सिबिलिटी, यहां पर जो 4 ऑप्शन है, यहां पर जो है वो सिंबॉलिक प्ले। ए चाइल्ड प्रिटेंडिंग ए बनाना इज ए फोन इज डेमोन्स्ट्रेटिंग ए सिंबॉलिक। तो सिंबॉलिक प्ले ये भी प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है, सिंबॉलिक प्ले प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 to 7 ईयर्स में आ जाता है। तो वो ये सोचता है कि बनाना को वो फोन के साथ इक्विवेलेंट करता है, वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ये जो बनाना है वो फोन की तरह है। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है 2 to 7 ईयर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को चलेंगे। व्हिच एबिलिटी डेवलप्स इन द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 7 to 11 ईयर्स है, जिसमें कंजर्वेशन को ग्रास्पिंग करता है, लॉजिकल रीजनिंग डेवलप होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वो डिफाइन कर पाता है। तो इसमें बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक नहीं होगा, ये फोर्स फॉर्मल स्टेज, हाइपोथेटिकल थिंकिंग फॉर्मल स्टेज, इगोसेंट्रिक प्री ऑपरेशनल। तो क्लासिफिकेशन एंड सीरियसन, ऑप्शन सी। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में वो क्लासिफाई कर पाता है और उसको सीरियल ऑर्डर में अरेंज कर लेता है, क्लासिफाई करके सीरियल में अरेंज कर देता है, और ये आ जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। और बाकी फर्स्ट सेकंड जो ए बी है वो फॉर्मल स्टेज का है, और डी इगोसेंट्रिक वो प्री ऑपरेशनल में आ जाता है, सेकंड स्टेज में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू Piaget, इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन assimilation and accommodation, a form of operant conditioning, the final stage of cognitive development, a type of egocentric thought. Option A, equilibrium is the balance between assimilation and accommodation. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, which criticism is often raised against Piaget's theory? क्या Piaget's theory को ज्यादातर जो क्रिटिसाइज किया गया है किस एरिया में किया गया है? He overestimated children's abilities, he ignored cultural influences, his stage are too flexible, he focused only on social learning. Actually he ignored cultural influences, क्योंकि उसका जो थ्योरी है कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को पूरा इग्नोर किया गया है, नेग्लेक्ट किया गया है। तो इसी एरिया के ऊपर एक्चुअली Piaget थ्योरी को ज्यादातर क्रिटिसाइज किया गया है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये 10 MCQs हो गया Piaget थ्योरी। तो आपको 4 स्टेजेस को थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है जो सोशियो कल्चरल थ्योरी आ जाता है, वो वाइगट्स्की का, लेव वाइगट्स्कीज सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पर सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को ऐड किया गया है। ओके, सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस लीड्स टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मगर वहां पर Piaget बोल दिए कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन लीड्स टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
तो वहां पर वो इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन के ऊपर एम्फासाइज किया है प्याजे। मगर ये बोले हैं कि सोशल, जो चाइल्ड जब सोशली इंटरेक्ट करता है उसके ऊपर कल्चरल का इन्फ्लुएंस होता है, तब उसका धीरे धीरे जो जो लर्निंग प्रमोट होता जाता है, लर्निंग एनहांस होता है, ठीक है, उसका मेंटल स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो अभी देखेंगे वाइगर्ट्स की सोशियो कल्चरल थ्योरी, इसको याद रखना है, सोशियो कल्चरल थ्योरी जो है वो लेव वाइगर्ट्स की का है। तो वही है, वो एम्फासाइज किया है सोशल इंटरेक्शन, कल्चर एंड लैंग्वेज, तीनों चीज के ऊपर एम्फासाइज किया है। एक है सोशल इंटरेक्शन, सेकेंड कल्चर इन्फ्लुएंसेस आएगा, और थर्ड वन लैंग्वेज। ये थ्री थिंग्स प्लेज वेरी पाइवटल रोल and very important role, very phenomenal role actually for cognitive development of the child, ठीक है। तो वाइगर्ट्स्की argued that learning is a social process mediated by others। अभी इसका जो इम्पोर्टेंट थोड़ा फीचर्स को देखेंगे, बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। एक है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन, एक जोन होता है प्रोक्सिमल जोन। क्या है इसमें कि चाइल्ड खुद इंडिपेंडेंटली एक काम करता है और बाकी उसको कोई हेल्प करता है, वो काम करने के लिए उसको कोई हेल्प करता है। इंडिपेंडेंटली द चाइल्ड डू द वर्क एंड द चाइल्ड नीड द हेल्प ऑफ अदर टू डू द वर्क। तो इसमें जैसे साइकिलिंग, एक चाइल्ड खुद साइकिल चलाने के लिए ट्राई करता है, मगर एक आदमी उसको हेल्प करता है कि कैसे साइकिल नॉर्मली चलाया जाएगा। तो ये एक जोन होता है, ये गैप होता है। ये गैप किसके अंदर है? व्हाट ए लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली। जो लर्नर है वो खुद इंडिपेंडेंटली वो काम करता है, और एंड व्हाट दे कैन अचीव विद गाइडेंस, और उसको कोई गाइड करता है, जैसे पेरेंट है कि टीचर है कि उसका जो पीयर ग्रुप में कोई उसका कलीग है, ठीक है। ये गैप यही है, ये जो गैप। तो गैप क्या है ना, आप देख लीजिए, लर्नर डू द वर्क इंडिपेंडेंटली एंड लर्नर डू द वर्क विथ गाइडेंस, लर्नर डू द वर्क विद द हेल्प ऑफ अदर। तो ये जो गैप होता है वही है जेडपीडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये जो सेंटेंस को पूरा याद रखना है, ठीक है। और ये स्कैफोल्डिंग एक टर्म है। स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग क्या है? मोर नॉलेजेबल पर्सन, एक मोर नॉलेजेबल पर्सन एक्चुअली वो चाइल्ड को हेल्प करता है और उसको सिखाता है कि साइकिल कैसे चलाना है। इनिशियली जब चाइल्ड साइकिल चलाता है वो ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंटली चला नहीं पाएगा, वो किसका हेल्प लेता है, चाहे उसका फादर मदर हेल्प करते हैं, चाहे उसका ब्रदर सिस्टर हेल्प करते हैं, चाहे उसका कलीग हेल्प करता है, ठीक है। तो टेम्पोररी सपोर्ट चाहिए। स्कैफोल्डिंग मींस टेम्पोररी सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय मोर नॉलेजेबल पर्सन। उसको हिंट्स देता है कि प्रॉम्प्ट्स की एक्सप्लेनेशंस टू हेल्प ए लर्नर मास्टर ए स्किल। मैं अभी एक एग्जांपल दिया, जैसे बच्चा, द चाइल्ड एक्चुअली इज अनएबल टू राइड द बाइसाइकिल, वो खुद बाइसाइकिल नहीं चला सकता, उसको एक मोर नॉलेजेबल पर्सन जो साइकिल के ऊपर नॉलेज है वो उसको गाइड करता है बच्चा को, वो टेम्पररी पीरियड के लिए, और धीरे धीरे बच्चा सीख लेता है, ठीक है। और पूरा जो मास्टरी स्किल आ जाता है वो कैसे साइकिल चलाएगा। तब क्या है, उसके बाद वो मोर नॉलेजेबल पर्सन को विथड्रॉ कर दिया जाता है, वो खुद आराम से चलाता है। तो ये स्कैफोल्डिंग है, जब टेम्पररी सपोर्ट को हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ग्रेजुअली जब लर्नर कॉम्पिटेंट हो जाएगा वो बेसिकली मोर नॉलेजेबल पर्सन का हेल्प नहीं लेगा, क्योंकि वो मास्टर हो चुका है ऑलरेडी, ही हैज मास्टर ओवर द स्किल। तो ये स्कैफोल्डिंग है, ये बहुत टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन जो वाइगोट्स्की एम्फसाइज किया है, रोल ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज इज द प्राइमरी टूल फॉर थॉट एंड लर्निंग। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चीज आप सोचते हो और आप कोई भी चीज लर्न करते हो तो वो लैंग्वेज एक्चुअली एक प्राइमरी टूल, लैंग्वेज के द्वारा। जैसे आपका फर्स्ट लैंग्वेज जब आपका मदर टंग है, इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन द चाइल्ड गेट फ्रॉम फादर एंड मदर, देन द चाइल्ड गो टू द स्कूल एंड लर्न अबाउट द लैंग्वेज, हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, राइट और नॉट। तो ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक प्राइवेट स्पीच का बात किया है, सेल्फ टॉक, वो खुद के साथ बात करता है, प्राइवेट स्पीच, वो सेल्फ टॉक जिसको बोलते हैं। इससे इनर स्पीच डेवलप होता है। सेल्फ टॉक से, प्राइवेट स्पीच से उसका इनर जो टॉक है डेवलप होता है। इनर वाइज वो क्या है, जैसे इनर थिंकिंग उसका डेवलप होता है कि हाँ ये चीज वो खुद नहीं बोलता है, मगर उसका जो इनर थिंकिंग डेवलप करता है कि यही चीज है। तो प्राइवेट स्पीच लीड्स टू इनर स्पीच, ठीक है। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। फर्स्ट हम मदर टंग, देन हम फिर
इंग्लिश है कि सपोज एनी अदर लैंग्वेज को आप धीरे धीरे एक्वायर करते हो, तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, हमारा जो लर्निंग एनहांसमेंट के लिए, हमारा जो नॉलेज को प्रमोट करने के लिए, हमारा मेंटल स्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए मेनली जो है लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर जो वाइगट्स्की की है प्राइवेट स्पीच, जो सेल्फ टॉक, वो खुद के साथ बात करता है और धीरे धीरे उसका इनर थिंकिंग डेवलप होता है। फोर्थ स्टेज है कल्चरल टूल्स एंड सोशल इंटरेक्शन। कल्चरल टूल्स में ये आ जाता है राइटिंग और नंबर्स, टेक्नोलॉजी एंड सोशल नॉर्म्स, ये सब आ जाता है। इससे कल्चरल जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो मेंटल डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस। ओके, कल्चरल टूल्स में जैसे वो राइटिंग्स और नंबर्स, टेक्नोलॉजी, सोशल नॉर्म्स, ये सब कल्चरल टूल्स में आ जाता है। इससे क्या है, जो मेंटल डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, और एक नेक्स्ट वन, लर्निंग ऑकर्स थ्रू कोलैबोरेटिव डायलॉग रादर देन आइसोलेटेड डिस्कवरी। कोलैबोरेटिव डायलॉग, आप देखिए, कोलैबोरेटिव डायलॉग एक्चुअली एक अच्छा इंटरेक्शन होता है, पीयर ग्रुप होता है, वो उनके बीच में बातचीत होता रहता है। ठीक है, तो इट मीन्स पीयर, विद इन पीयर ग्रुप एक्चुअली ईच एंड एवरी चाइल्ड दे वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम अदर्स, so they are discussing, they are talking, they are continuously talking, they are interacting among each other, तो इसमें एक्चुअली लर्निंग इज टेकिंग प्लेस। तो ये वही है, सोशल इंटरेक्शन के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज किया है वाइगट्स्की ने। ठीक है, तो ये सब चीज के ऊपर एक्चुअली जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर, ये तीनों चीज को एक्चुअली वाइगट्स्की एम्फसाइज किया है। इससे एक्चुअली कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो मेंटल डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का। ठीक है, चलो ठीक है, उसके कंपैरिजन देख लेंगे थोड़ा प्याजे और वाइगट्स्की के बीच में। वाइगट्स्की बोल रहे हैं कि लर्निंग इज सोशियली कंस्ट्रक्टेड। डेफिनेटली जो कोलैबोरेशन का बात आया, कि लैंग्वेज का बात आया, कि कल्चर का बात आया, तो सोशल इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। व्हेन द चाइल्ड एक्चुअली अमंग द पीयर ग्रुप्स दे डिस्कस, द चाइल्ड फ्रीक्वेंटली इंटरेक्टिंग विद द टीचर्स, इंटरेक्टिंग विद द पेरेंट्स, इंटरेक्टिंग विद द रिलेटिव्स, तब उसका क्या है, धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलप होता है और उससे क्या है, उसका मेंटल स्ट्रक्चर धीरे धीरे डेवलप होता है। मगर पैजे बोले लर्निंग इज इंडिविजुअली कंस्ट्रक्टेड, वो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन स्टेज टू स्टेज एक्चुअली उसका जो इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन से एक्चुअली उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, पैजे बोल रहे हैं। वाइगट्स्की एम्फसाइज कर दिया लैंग्वेज कल्चर को, मगर जो प्याजे एक्चुअली फोकसेस ऑन यूनिवर्सल बायोलॉजिकल स्टेजेस, फोर स्टेजेस से मैच्योरिटी डेवलप होता है। और वाइगट्स्की जेडपीडी एंड स्कैफोल्डिंग टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट को लाए हैं, मगर जो प्याजे का थ्योरी में मैच्योरेशन एंड एक्सप्लोरेशन ड्राइव, तो ये थोड़ा डिफरेंस था, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चलो कुछ एमसीक्यूज देखेंगे वाइगट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए, वाइगट्स्की's थ्योरी एम्फसाइजेस दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर, इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन ओनली, जेनेटिक इनहेरिटेंस। तो इसमें ऑप्शन बी सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर। जो कल्चरल टूल्स है, राइटिंग है, जैसे आपका वहां पर दे दिया गया टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ये सब कल्चरल टूल्स में आता है। तो एक कल्चर इन्फ्लुएंस होता है, कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है चाइल्ड के ऊपर, और एक है सोशल इंटरेक्शन। तो वाइगट्स्की थ्योरी एक्चुअली दोनों के ऊपर आप तीन चीज आप ध्यान दीजिए, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 12 में देखिए, जोन ऑफ जो जेडपीडी एक गैप है, किसके बीच में गैप है, द चाइल्ड डू द वर्क इंडिपेंडेंटली एंड चाइल्ड डू द वर्क नीड द हेल्प ऑफ अदर। तो ये दोनों के बीच में जो गैप को हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, द गैप बिटवीन व्हाट ए चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद गाइडेंस। ठीक है, स्कैफोल्डिंग के बारे में, स्कैफोल्डिंग एक टेम्पोररी सपोर्ट होता है। जैसे मैं एग्जांपल दिया था, जब चाइल्ड बाइसाइकिल इनिशियली सीख रहा है, तो वो हेल्प लेता है, पेरेंट्स का हेल्प लेता है, कि कोई उसका फ्रेंड का हेल्प लेता है। ठीक है, तो ये नॉलेजेबल पर्सन, नॉलेज मीन्स एक्चुअली जिसके पास नॉलेज है कि बाइसाइकिल को कैसे अच्छे से चलाया जाएगा, सो नीड द टेम्पोररी सपोर्ट ऑफ ए नॉलेजेबल पर्सन। ठीक है, तो जब उसका बाइसाइकिल चलाने के लिए जब मास्टरी आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो क्या है, खुद चलाता है, और वो जो नॉलेजेबल पर्सन विथड्रॉ हो जाता है।
तो वही है स्कैफोल्डिंग, टेम्पररी सपोर्ट। तो लेटिंग चिल्ड्रन लर्न एंटायरली ऑन देयर ओन, प्रोवाइडिंग टेम्पररी सपोर्ट टू हेल्प ए लर्नर मास्टर स्किल। ऑप्शन बी, यही है स्कैफोल्डिंग इन वाइगोत्स्की's theories मीन्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 14, according to Vygotsky, private speech means self-talk, is a sign of cognitive delay, a tool for regulating thoughts and problem solving, only relevant in adulthood, unrelated to learning. Option B, a tool for regulating thoughts and problem solving. ये जो प्राइवेट स्पीच है मैं बताया, प्राइवेट स्पीच सेल्फ टॉक से इनर स्पीच डेवलप होता है। तो उसमें क्या है, उसका वो थॉट्स को, जो थिंकिंग को रेगुलेट करता है और प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेता है। कोई भी प्रॉब्लम चाइल्ड जब अराइज होता है, वो चाइल्ड खुद उसका इनर थिंकिंग से उसको सॉल्व करता है। तो सेल्फ टॉक जो है प्राइवेट स्पीच लीड्स टू इनर स्पीच। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following is a cultural tool in Vygotski's theory? Instincts, DNA, language, writing and calculators, muscle strength. ये जो कल्चरल टूल है, ऑप्शन सी, लैंग्वेज, राइटिंग एंड कैलकुलेटर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, Vygotsky's theory contrasts with Piaget's because it focuses more on universal biological stages, the role of social and cultural context, individual discovery without guidance, fixed intelligence quotas। तो ऑप्शन बी, जो Piaget का जो थ्योरी है वो बायोलॉजिकल स्टेजेस है, मगर वाइगोट्स्कीज का जो थ्योरी है मेनली वो सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस के ऊपर एम्फसाइज किया है, जिससे एक्चुअली मेंटल डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का। तो यहाँ पर बेसिकली जब हम कंट्रास्ट देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, वही मिलेगा वाइगोट्स्की थ्योरी में, द रोल ऑफ सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 17, इन ए क्लासरूम अप्लाइंग वाइगोट्स्की's थ्योरी वुड इन्वॉल्व। क्लासरूम में देखिए आप अप्लाई कीजिए वाइगोट्स्की थ्योरी, जो सोशियो कल्चरल थ्योरी, आइसोलेटिंग स्टूडेंट्स फॉर इंडिपेंडेंट वर्क, पीयर कोलैबोरेशन एंड गाइडेड टीचर सपोर्ट, मेमोराइजेशन विदाउट डिस्कशन, इग्नोरिंग स्टूडेंट्स कल्चरल बैकग्राउंड्स। तो इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पीयर कोलैबोरेशन एंड गाइडेड टीचर सपोर्ट। तो पीयर कोलैबोरेशन जैसे मतलब तो एक इंट्रैक्शन होता है, डिस्कशन, इंट्रैक्शन, फ्रीक्वेंटली टॉकिंग, इसमें एक्चुअली लर्निंग प्रमोट होता है। और एक है जिसमें मैं बोला था स्कैफोल्डिंग, जो टेम्पररी सपोर्ट होता है, जस्ट मास्टरिंग ओवर ए स्किल ना, गाइडेड टीचर सपोर्ट। तो स्कैफोल्डिंग में बोला था टेम्पररी सपोर्ट। तो लर्निंग के लिए एक्चुअली किसका सपोर्ट चाहिए, टीचर का सपोर्ट चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 18 में देखिए, द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग सोशल स्पीच इनटू इनर थॉट्स इज कॉल्ड असिमिलेशन, कंजर्वेशन, इंटरनलाइजेशन, इगोसेंट्रिज्म। ऑप्शन सी, जैसे सेल्फ टॉक जो होता है ना, सेल्फ टॉक लीड्स टू इनर स्पीच, वही इनर थॉट। तो वही वाइगोट्स्की एम्फसाइज किया है कि चाइल्ड का एक प्राइवेट स्पीच जो है, सेल्फ टॉक एक्चुअली डेवलप होता है, सेल्फ टॉक से उसका इनर थॉट डेवलप होता है, जिसमें वो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होता है तो सॉल्व कर लेता है। ठीक है, और उसका थॉट्स को वो रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, Vygotsky argued that language develops from social communication to private speech to inner speech to private speech, biological instincts only, non-verbal gestures only। ऑप्शन ए, सोशल कम्युनिकेशन। सोशल कम्युनिकेशन से क्या होगा, सेल्फ टॉक, प्राइवेट स्पीच। तो सेल्फ टॉक वो खुद के साथ बात करेगा, तब उसका इनर थिंकिंग डेवलप होगा। तो फर्स्ट वो सोसाइटी में इंटरेक्ट करेगा, लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा, स्कूल में इंटरेक्ट विथ टीचर्स, इंटरेक्ट विथ हिज फ्रेंड्स, तब उसका सेल्फ टॉक डेवलप होगा, प्राइवेट स्पीच, वो खुद के साथ बात करेगा और उससे इनर स्पीच, जो इनर थिंकिंग डेवलप होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ए क्रिटिसिज्म ऑफ Vygotsky's theory is that, Vygotsky थ्योरी जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है, उसको क्रिटिसाइज किया गया था किस एरिया में? overlooks the role of culture, ignores the importance of social interaction, lacks detailed mechanisms for how social learning translates to cognition, focuses too much on fixed stages। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ जो lacks detailed mechanisms for how social learning translates to cognition।
ठीक है, इसी एरिया में वाइगट्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट को चलेंगे। एरिक एरिक्सन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसके ऊपर क्वेश्चन लगातार आता है। एरिक एरिक्सन साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी, साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी, वो 8 स्टेजेस के ऊपर एक्चुअली एम्फासाइज किया है एरिक एरिक्सन ने। 8 साइकोसोशियल स्टेजेस आर देयर, 8 साइकोसोशियल स्टेजेस आर देयर। तो उसमें जो 5 स्टेजेस है, फर्स्ट 5 स्टेजेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी स्टेज में क्राइसिस होता है, और वो जब नेक्स्ट स्टेज को चला जाता है तो प्रीवियस स्टेज में जो क्राइसिस था वो रिजॉल्व हो जाता है, सॉर्ट आउट हो जाता है। ठीक है, और दैट मस्ट बी रिजल्व टू डेवलप ए हेल्दी पर्सनालिटी एंड एक्वायर्स की वर्च्यूज। अभी देखेंगे 8 स्टेजेस, ये 8 स्टेज के ऊपर क्वेश्चन आता है। की कॉन्सेप्ट्स का बात करेंगे। एरिक एरिक्सन का जो साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी है, एक है साइकोसोशियल, नॉट साइकोसेक्सुअल। साइकोसेक्सुअल जो वर्ड है वो सिगमंड फ्रॉइड का है, ठीक है, मगर एरिक्सन का है साइकोसोशियल। तो इसमें वही है, सोशियल इंटरेक्शन एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस का बात आता है, सोशियल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। इसके ऊपर एरिक एरिक्सन ने एम्फासाइज किया है, नॉट बायोलॉजिकल, नॉट जस्ट बायोलॉजिकल टाइप्स। ठीक है, स्टेजेस आर वेरी सीक्वेंशियल। एवरी स्टेज में क्राइसिस आता है, जब नेक्स्ट स्टेज को चले जाते हैं प्रीवियस स्टेज का क्राइसिस रिजॉल्व हो जाता है, वही पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो भाई ईच बिल्ड्स ऑन द प्रीवियस वन। क्राइसिस रेजोल्यूशन, सक्सेस, इसमें सक्सेस लीड्स टू कॉम्पिटेंस, फेल्योर लीड्स टू डिफिकल्टीज। जो क्राइसिस रेजोल्यूशन में सक्सेस से लीड्स टू कॉम्पिटेंस एंड फेल्योर जब होता है लीड्स टू डिफिकल्टीज। ये सब की कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली एरिक एरिक्सन का जो साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी है। अभी 8 स्टेजेस को देखेंगे, आप क्लियर हो जाएंगे। आप 8 स्टेजेस यहां पर दे दिया, देखिए। फर्स्ट इन्फांट का स्टेज है, इन्फांसी 0 to 1 ईयर्स। इन्फांसी में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट क्या है? चाइल्ड बहुत बिलीव करता है उसका मदर, और कभी कभी जब जब नया नया केयर टेकर आता है घर को, वो उसको भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसके ऊपर वो मिसट्रस्ट करता है। आप देखा होगा जब चाइल्ड बाहर जाता है, एक छोटा बच्चा, अप टू 1 ईयर चाइल्ड को हम बाहर लेते हैं और कोई वो अननोन पर्सन को देखता है, वो रोता है, तो वही वही मिसट्रस्ट आ जाता है। मगर ट्रस्ट का बात आता है, उसका मदर को, उसका फादर को, उसके उनके ऊपर ट्रस्ट है कि उनका घर में जो केयर टेकर है उनके ऊपर उसका ट्रस्ट है। मगर जब अननोन पर्सन को देख लेता है वो, द चाइल्ड इमीडिएटली द चाइल्ड क्राई। तो ये ट्रस्ट मिसट्रस्ट, यहां पर जो वर्च्यू है पॉजिटिव आउटकम होप है, ठीक है, और जो नेगेटिव आउटकम है फियर और इनसिक्योरिटी। फियर इनसिक्योरिटी मीन्स मिसट्रस्ट का बात जब आता है, फियर और इनसिक्योरिटी, वो जब अननोन पर्सन को देखता है उसका एक फियर होता है माइंड में, और इनसिक्योरिटी वो फील करता है। तो फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सेकेंड टोडलर का बात आ जाएगा। सेकेंड टोडलर 1 to 3 ईयर्स। 1 to 3 ईयर्स ऑटोनोमी वर्सेस सेम और डाउट। ये जो साइकोलॉजिकल क्राइसिस है, एवरी क्राइसिस, एवरी स्टेज में क्राइसिस है, और जब वो नेक्स्ट स्टेज को चला जाता है प्रीवियस स्टेज का क्राइसिस रिजॉल्व हो जाता है। अभी 1 to 3 ईयर्स टोडलर में ऑटोनोमी वर्सेस सेम और डाउट। इसको देखिए, वो ऑटोनोमी क्या है? वो खुद काम करना चाहता है, ठीक है, खुद वो एक्शन वो इनिशिएट करना चाहता है, और जब उसको टोक देते हैं, फादर मदर, उसका पेरेंट्स देखते हैं कि वो गिर जाएगा, सपोज वो कोई ऑब्जेक्ट को उठाता है, ठीक है, ट्राई करता है, वो ऑटोनोमी वो खुद करना चाहता है, और उस समय उसका फादर मदर उसको टोक देते हैं, तो उसमें क्या है? वो सेम फील करता है, ठीक है। तो ये ऑटोनोमी वर्सेस सेम और डाउट। क्यों? 1 to 3 ईयर चाइल्ड है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट को वो पकड़ लेता है, और वो ऑब्जेक्ट बहुत वेट है ऑब्जेक्ट का, सपोज उसके ऊपर गिर सकता है, उसका पैर के ऊपर गिर सकता है, ठीक है। तो इसलिए जब वो खुद करना चाहता है, भाई ऑटोनॉमी है, वो चाहता है कि मेरा विल पावर है, पॉजिटिव वर्च्यू है, मैं खुद कर सकता हूं, मगर उसमें कोई टोकता है, उसका फादर मदर टोकते हैं, नहीं नहीं ये मत करो, तो पकड़ लेते हैं और ऑब्जेक्ट को उससे खींच लेते हैं। तो ये सब चीज में वो सेम फील करता है। तो यहां पर जो वर्च्यू है विल पावर है, और यहां पर जो नेगेटिव आउटकम से सेल्फ डाउट है, ठीक है। और प्री स्कूल का स्टेज आ गया 3 to 6 ईयर्स। जो अभी 3 to 6 ईयर्स जो बाल बाटिका एज ग्रुप है, 3 to 6 ईयर्स, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट को मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं। वो कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, 3 to 6 ईयर चाइल्ड वो कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, और जब वो एक्सपेरिमेंट वो खुद करता है, तब उस केस में क्या है?
सपोज कोई उसको मना करता है, नहीं नहीं ये एक्सपेरिमेंट मत करो, उसका फादर मदर उसको मना करते हैं कि सपोज स्कूल में वो कुछ एक्सपेरिमेंट करता है तब उसका टीचर्स उसको टोक देता है, तो उसमें वो गिल्ट फील करता है, गिल्टी फील करता है। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है। वर्च्यू है पर्पोज, और नेगेटिव आउटकम से इनहिबिशन, क्योंकि कुछ कुछ चीज वो क्या है, जो 3 to 6 ईयर से वो खुद एक एक्सपेरिमेंट, खुद एक एक्टिविटी करना चाहता है, और जब वो एक्टिविटी स्टार्ट किया तब उसका पेरेंट्स ने घर में क्या है, होम में पेरेंट्स ने उसको सपोज मना किया कि वो स्कूल में ऐसा कुछ एक्टिविटी के एक्सपेरिमेंट करता है, उसका टीचर उसको मना करते हैं, तो वो वही है, वो इनिशिएटिव लेना चाहता है, मगर जब उसको मना कर दिया जाता है ये काम मत करो, तब वो गिल्टी फील करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो इसमें क्या है, एनकरेजमेंट चाहिए चाइल्ड को, वो खुद एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, अब वेट करो वो क्या कर रहा है। ओके, उसको सडनली उसको मना मत करो, वो करेगा, और वो एनकरेज करो, यदि वो कर लेता है ठीक है, यदि वो नहीं करता है ठीक है, वो तो एटलीस्ट गिल्टी फील नहीं करेगा, क्योंकि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और मेरा पेरेंट्स देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, आप सडनली कुछ बोल दिया, नहीं नहीं एक्सपेरिमेंट मत करो, तो वो क्या होगा, गिल्टी फील करेगा। तो वहां पर एनकरेजमेंट चाहिए, कोई इनिशिएटिव वो करता है, कोई एक्सपेरिमेंट करता है, उसको एनकरेजमेंट चाहिए। तो यहां पर देखिए वर्च्यू जो है पॉजिटिव आउटकम पर्पस है, नेगेटिव आउटकम इनहिबिशन है। स्कूल एज आ गया 6 to 12 ईयर्स। स्कूल एज में इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, इसमें थोड़ा मैं क्लैरिफाई, इंडस्ट्री मींस वो बहुत हार्ड वर्क करता है, एक्चुअली द चाइल्ड पुट हार्ड वर्क एंड वांट टू सिक्योर गुड मार्क्स। ओके, he must better in studies and other co-curricular activities, मगर inferiority क्या है, जब उसका परफॉर्मेंस not up to the expectation, when his performance is not up to the expectation, then the teachers actually scold him, कि parents scold him, ठीक है, the parents irritate over him because your performance is not up to the mark, कि your performance in the co-curricular activity is not up to the mark, तो इसमें inferiority वो फील करता है। तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, दोनों दो चीज आता है, अच्छा मार्क लाता है उसको रिवॉर्ड मिलता है, उसको सब अच्छा बोलते हैं, व्हेन ही गेट गुड मार्क्स, व्हेन ही गेट गुड परसेंटेज, देन ही गॉट कमेंडेशन फ्रॉम द टीचर्स एंड पेरेंट्स। मगर वो जब मार्क कम हो जाता है कि कोई एक्टिविटी, कोई कंपटीशन में उसका परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क, वहां पर क्या है, थोड़ा उसका पेरेंट्स इरिटेट होते हैं, उसके ऊपर टीचर्स भी इरिटेट होते हैं, तो ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो स्कूल एज में जो वर्च्यू है कॉम्पिटेंस है, और नेगेटिव आउटकम इनएडिक्वेसी। ठीक है, और एक एडोलेसेंस एज आया 12 to 18, ये बहुत क्रूशियल स्टेज है, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस स्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि यहां पर ही उसका जो पॉवर्टी स्टेज होता है, ये एडोलेसेंस स्टेज में उसका जो फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है, और एजुकेशनल प्रेशर होता है, और वो एक्चुअली उसका गोल एम्बिशन को वो फिक्स करेगा आगे में, तो बहुत चैलेंजेस होता है। तो यहां पर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये स्टेज बहुत आइडेंटिटी क्राइसिस है। तो कभी कभी वो चाइल्ड खुद पूछता है हु एम आई, ठीक है, कभी कभी उतना प्रेशर, एजुकेशनल प्रेशर है, उसका बॉडी चेंजेस होता है, उसका जो मेंटल चेंजेस आता है, और उसके ऊपर थोड़ा बर्डन है कि आपका एम्बिशन फिक्स करना है कि आप इंजीनियरिंग करोगे ना मेडिकल करोगे ना अदर प्रोफेशनल लाइन में जाओगे, क्या क्या लॉ करोगे कि जनरल लाइन में जाओगे, ये सब प्रेशर होता है। तो कभी कभी वो खुद को पूछता है, वो कंफ्यूजन होता है, हु एम आई, व्हाट कैन आई डू इन फ्यूचर, इन विच डायरेक्शन इट मींस आई विल टेक माय कैरियर। तो ये वो खुद क्वेश्चन पूछता है, तो वो खुद का आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन करता है, उसका रोल क्या है उसके ऊपर वो कंफ्यूजन है। तो यहां पर क्या है, फाइडलिटी पॉजिटिव है, फाइडलिटी उसके ऊपर बिलीव करना चाहिए, बच्चा के ऊपर फेथ होना चाहिए। ठीक है, तेरा गोल है तू मेडिकल क्रैक करेगा, ठीक है, उसके ऊपर ठीक है, मेडिकल क्रैक करेगा नहीं करेगा अलग बात है, मगर तू प्रिपेयर कर, क्योंकि सो मेनी ऑप्शंस आर देयर। यदि मेडिकल एग्जाम तो क्रैक नहीं कर पाएगा तो अदर ऑप्शन है, तो उसको उस फेथ चाहिए, किसका फेथ चाहिए, पेरेंट्स का फेथ चाहिए, टीचर्स का फेथ चाहिए। ठीक है, तो फाइडलिटी और कंफ्यूजन अबाउट सेल्फ जो है नेगेटिव आउटकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। ये जो 5 स्टेज है एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट, इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, अदर 3 स्टेजेस के ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं आता है। और एक यंग अडल्टहुड 18 to 40, जो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इंटीमेट होता है उसका, इसी स्टेज में मैरिज होता है, लव रिलेशन डेवलप होता है, और कभी कभी वो आइसोलेट खुद को कर लेता है, कभी कभी सपोज उसका मैरिज ब्रेकअप हो जाता है,
कि कोई मैरिटल डिस्कॉर्ड है, वो खुद को आइसोलेट करता है, तो यहां पर पॉजिटिव वर्च्यू है लव एंड नेगेटिव आउटकम है लोनलीनेस। तो ये यंग एडल्टहुड 18 to 40, ठीक है। और नेक्स्ट जो सेवेंथ स्टेज है मिडिल एडल्टहुड 40 to 65, इसमें क्या है ना, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जेनरेटिविटी क्या है, वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रिपेयर करता है। जेनरेटिविटी ये जो एज 40 to 65 नेक्स्ट जनरेशन को वो प्रिपेयर करता है, नेक्स्ट जनरेशन कैसे अच्छा होगा, ठीक है, वो उसके उसके ऊपर वो उसका थिंकिंग होता है, ठीक है। और एक स्टैग्नेशन है, वो नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर कभी नहीं सोचता है। कि कभी आप देखा होगा, कभी कभी इसी एज का लोग बैठे हैं, एक लड़का एग्जाम देने के लिए जा रहा है, उसको पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग नाउ, ना टुडे आई विल फेस वन एग्जाम, what exam you will face now, actually ipin success rate is actually it is only 1% and it is too difficult to get the job, why waste money। तो इसमें एक डिमोरलाइज वो करते हैं, तो इस तरीका का चीज में स्टैग्नेशन आ जाता है। तो नेक्स्ट जनरेशन को प्रिपेयर करने के लिए क्या है, मोटिवेशन चाहिए, एनकरेजमेंट चाहिए। तो वही है जनरेटिविटी, नेक्स्ट जनरेशन को आप प्रिपेयर करो, आप उनको एनकरेज करो, आप उनको मोटिवेट करो, आप उनको बूस्ट करो। मगर कभी कभी स्टैग्नेशन आ जाता है, वो नहीं चाहते कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन डेवलप हो। तो कभी कभी क्या है, इसी एज का ग्रुप, कोई जैसे मैं बताया, कोई एक लड़का प्रिपेयर कर रहा है एग्जाम के लिए, वो मना करते हैं क्या एग्जाम प्रिपेयर कर रहा है आप, यू गो एंड ज्वाइन द प्राइवेट जॉब, देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री एंड सक्सेस रेट इज वेरी लेस, इट इज ओनली 1%, why you prepare, why you waste money, why you invest money on your preparation like this। तो इसमें वर्चू केयर है, पॉजिटिव आउटकम, सेल्फ ऑब्जर्वेशन है नेगेटिव। लास्ट जो ओल्ड एज है 65 प्लस, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इंटीग्रिटी क्या है, वो जो पास्ट थिंग को रिमेंबर करता है, जितना भी पास्ट चीज में वो जो जो किया है उसको रिमेंबर करता है, ठीक है। द पर्सन एक्चुअली रिमेंबर हिज पास्ट डीड्स, हिज पास्ट वर्क, और वो प्रेज करता है, और कुछ वर्क में सक्सेस हुआ, कुछ वर्क में फेल्योर है, मगर कुछ वर्क में तो सक्सेस हुआ। तो वही इंटीग्रिटी। और एक डिस्पेयर, क्योंकि पास्ट को सोचता है और वो सोचता है कि इट मींस एवरीथिंग फेल्ड इन द पास्ट, व्हाट आई डिड, एवरी रॉन्ग थिंग आई डिड, ऑल टाइप ऑफ मिस्टेक आई डिड इन माय पास्ट। तो इसमें क्या है, डिस्पेयर एक आ जाता है। तो इसमें विजडम पॉजिटिव वर्च्यू है, रिग्रेट और डिस्पेयर जो है नेगेटिव आउटकम है। तो इसमें फास्ट 5 स्टेजेस के ऊपर एक्चुअली क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैं थोड़ा उसको क्लैरिफाई किया। अभी चलते हैं नेक्स्ट, ट्रस्ट मिसट्रस्ट में बताया। इन्फांसी स्टेज में जो 0 to 1 years बेबीज लर्न वेदर केयर गिवर्स आर रिलायबल। तो बेबी मिसट्रस्ट क्या है, जो केयर गिवर है, वो केयर टेकर है, उसके ऊपर उसका बिलीव नहीं है, फेथ नहीं कि क्या मुझे वो सिक्योरिटी दे सकता है, ठीक है कि नहीं। तो मिसट्रस्ट का बात आते हैं, वो ज्यादातर ट्रस्ट करता है उसका पेरेंट्स को, ज्यादातर ट्रस्ट करता है उसका मदर को। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम में बताया था, टोडलर एज में वो खुद करना चाहता है, टोडलर स्टेज में खुद करना चाहता है, मगर उस समय उसका पेरेंट्स को उसको टोक देते हैं, नो नो यू डोंट डू सच टाइप ऑफ थिंग, कि एक ऑब्जेक्ट को उठा रहा है और उसमें पेरेंट्स मना करते हैं, नो नो डोंट एक्चुअली लिफ्ट द ऑब्जेक्ट, इट इज फॉलिंग ओवर योर लेग लाइक दिस। तो वो उसमें गिल्टी फील करता है, सेम फील करता है, ठीक है। तो आई कैन डू इट माई सेल्फ वर्सेस डाउट इन एबिलिटीज। आई कैन डू इट माई सेल्फ मीन्स एक्चुअली ऑटोनॉमी है, और जब उसको उसका पेरेंट्स उसको टोक देते हैं, वो डाउट फील होता है उसका एबिलिटी के ऊपर। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, एक आइडेंटिटी क्राइसिस एडोलेसेंस स्टेज में बताया था। एडोलेसेंस स्टेज जो है 12 to 18 years, ठीक है। 12 to 18 years बहुत कंफ्यूजन, आइडेंटिटी क्राइसिस स्टेज है, बहुत एजुकेशनल प्रेशर है, उसका बॉडी में चेंजेस आता है, उसका मेंटल स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है, एजुकेशनल प्रेशर होता है, उसका गोल को वो फिक्स करता है, बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन है पेरेंट्स का, टीचर्स का, बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन होता है। तो कभी कभी वो कंफ्यूजन होता है, क्या किस तरीके का रोल वो प्ले करेगा, ठीक है। तो हुआ हमारा इस तरीके का क्वेश्चन वो खुद को पूछता है। ये जेनेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन के ऊपर में बताया अडल्ट स्टेज, और इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर एल्डरली बताया। ये थोड़ा की टेक अवेज, इसको थोड़ा आप देख लीजिए, ठीक है। अभी चलेंगे एरिक एरिक्सन्स जो साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। एरिक्सन्स थ्योरी डिफर्स फ्रॉम फ्रूड, सिगमंड फ्रूड्स, इन दैट इट एम्फसाइजेस। जो सिगमंड फ्रूड का थ्योरी है वो साइकोसेक्सुअल है, मगर जो एरिक्सन का साइकोसोशियल है। साइकोसोशियल मीन्स सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस के ऊपर ज्यादा एरिक्सन एम्फसाइज किया है। बायोलॉजिकल ड्राइव्स ओनली, साइकोसेक्सुअल, social and cultural influences, unconscious motives. Option C is the correct answer.
तो जो सिगमंड फ्रीड का थ्योरी है वो साइकोसेक्सुअल है स्टेजेस, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 22 को चलेंगे। ए टॉडलर हु इज एनकरेज टू एक्सप्लोर गेम्स, तो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, तो विल पावर ऑटोनॉमी आ जाता है। टॉडलर हु इज एनकरेज्ड, ऑटोनॉमी वो खुद उसको करने दो चाइल्ड को। ऑटोनॉमी मीन्स ही कैन डू इट इंडिपेंडेंटली। जो इस ये जो एज ग्रुप है बेसिकली इस एज ग्रुप को ये जो टोडलर का 1 to 3 इयर्स होता है, ये टोडलर का एज ग्रुप है, वो खुद करना चाहता है ये काम। कोई एक ऑब्जेक्ट को उठाता है तो आप उसको एनकरेज करो। आप देखते हो उसको, इमीडिएटली उसको टोको मत, इमीडिएटली उसको मना कर देते हो, उन्होंने ये डोंट लिफ्ट द ऑब्जेक्ट, तब उसको क्या है वो सेम फील करता है। तो उसको करने दो फर्स्ट। आप देखो वो खुद कर पाता है कि नहीं, उसको एनकरेज करो, उसको मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। तो ये ऑटोनॉमी विल पावर, जो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 23 में the virtue gained from successfully resolving the initiative versus guilt stage। initiative guilt stage बेसिकली प्री स्कूल स्टेज में बताया था। जो प्री स्कूल स्टेज है, प्री स्कूल 3 to 6 इयर्स, ठीक है। इसमें क्या है, वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, कुछ इनिशिएटिव करना चाहता है, ठीक है। और यदि जब वो एक्सपेरिमेंट करता है, सपोज इन होम में, ही द चाइल्ड वांट टू डू वन एक्सपेरिमेंट and at that time actually his parents actually criticize him, don't do such type of thing। तो ये इसमें क्या है, इनिशिएटिव वो गिल्टी फील करता है जब उसका पेरेंट्स उसको टोक देते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट मत कर। तो ये है यहां पर जो है पर्पोज है, ठीक है, एक उद्देश्य होता है, एक पर्पोज होता है। तो यहां पर जो प्री स्कूल 3 to 6 इयर्स वही स्टेज है। तो इसमें क्या है, एक्सपेरिमेंट करने दो चाइल्ड को, द चाइल्ड मस्ट डू एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट वन यू ऑब्जर्व इट, okay, just you observe it, the parents should observe it, the teacher should observe it कि what type of experiments he want to make। तो just you wait, suddenly immediately hastily you do not deny the child कि don't do the experiment। तो उसमें क्या है, उसको गिल्टी फील होता है। तो ऑप्शन बी जो वर्च्यू है, पर्पोज, पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो पर्पोज है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेरा टेबल को देख लीजिए। 24 इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ये स्कूल एज है 6 to 12 इयर्स, ये स्कूल एज है। द चाइल्ड पुटिंग हार्ड वर्क ना, चाइल्ड पुटिंग हार्ड वर्क, द चाइल्ड ट्राई टू सिक्योर गुड मार्क, ट्राई टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट कॉम्पिटिशंस, राइट, एंड वांट टू गिव द बेस्ट। तो वो इंडस्ट्रियस होता है। और इंफीरियरिटी का बात जब आता है, जब उसका परफॉर्मेंस सही नहीं होता है, when his performance is not up to the mark, when he could not perform properly, suppose in academics, in other co-curricular activities, at that time actually parents and teachers actually scold him। तो ये inferiority complex आ जाता है। तो ये स्कूल एज है 6 to 12 इयर्स है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी occurs during 6 to 12 इयर्स, ये स्कूल एज है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट 25, द प्राइमरी क्राइसिस ऑफ एडोलेसेंस 12 to 18 इयर्स में बताया था। ये जो एडोलेसेंस स्टेज है एक आइडेंटिटी क्राइसिस स्टेज है, आइडेंटिटी क्राइसिस स्टेज है, क्योंकि सो मच प्रेशर होता है, एजुकेशनल प्रेशर होता है, और उसका बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है, उसका मेंटल स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है। आप कुछ बोल देते हो वो सडनली चाइल्ड इरिटेट हो जाता है इसी एज में, और बहुत कुछ प्रेशर के वजह से एक्चुअली वो इसी एज में वो एम्बिशन, उसका जो गोल है फिक्स करेगा कि उसमें उसका 12th एक्चुअली कंप्लीट होगा, और उसके बाद वो प्रोफेशनल स्टडीज में जाएगा। उसका एम एक है, वो चाहता है कि मैं, चाइल्ड चाहता है कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊंगा, मगर पेरेंट्स प्रेशर कर रहे हैं तुझे मेडिकल करना है। तो ये जो इसमें वो रोल कंफ्यूजन, आइडेंटिटी रोल कंफ्यूजन, वो खुद को कुछ पूछता है, हु एम आई, मैं कौन हूं, ठीक है, जो व्हाट इज माय गोल, इन व्हाट डायरेक्शन माय कैरियर विल मूव। सो मेनी क्वेश्चंस ही आस्क्ड टू हिमसेल्फ। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, राइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 26 को चलेंगे। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, फेलियर टू रिजॉल्व ए स्टेज क्राइसिस में, फेलियर टू रिजॉल्व ए स्टेज क्राइसिस में हैव नो लास्टिंग इंपैक्ट, अफेक्ट लेटर स्टेजेस बट कैन बी करेक्टेड, परमानेंटली हॉल्ट डेवलपमेंट, ओनली इन्फ्लुएंस बायोलॉजिकल ग्रोथ। अफेक्ट लेटर स्टेजेस बट कैन बी करेक्टेड, आपको मैं बताया था एवरी स्टेज में क्राइसिस है,
जब वो नेक्स्ट स्टेज को जाता है, जो प्रीवियस स्टेज का क्राइसिस रिजल्व हो जाता है। ठीक है, तो यही है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच स्टेज फोकसेस ऑन फॉर्मिंग क्लोज रिलेशनशिप्स। क्लोज रिलेशनशिप जो यंग अडल्टहुड स्टेज होता है, 18 to 40 ईयर्स, यंग अडल्टहुड स्टेज क्लोज रिलेशनशिप स्टेज है। इंटीमासी और जिसमें आइसोलेशन, यंग अडल्टहुड स्टेज, इंटीमासी वर्सेस आइसोलेशन, मेन वर्चुअल लव होता है यहाँ पर। ठीक है, नहीं तो जो नेगेटिव है वो लोनलीनेस आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये बेसिकली सिक्स्थ स्टेज है। ठीक है, ये सिक्स्थ स्टेज एरिक्सन का। ठीक है, 28 को चलेंगे। ए 4-year-old who is punished for asking too many questions may develop। 4-year-old में बताया था जो 3 to 6 ईयर्स है वो प्री स्कूल स्टेज है। प्री स्कूल में इसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है, जो साइकोलॉजिकल क्राइसिस होता है ये इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है। वो कुछ इनिशिएटिव लेना चाहता है, वो कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है और उसको आप मना कर देते हो तो वो गिल्टी फील करता है। तो इसमें मैं थोड़ा आइडिया दिया, क्वेश्चन देखेंगे। ए 4-year-old हु इज पनिश्ड फॉर आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस। एक 4-year चाइल्ड बच्चा बहुत कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है और उसमें उसको पनिशमेंट दिया जाता है कि क्यों इतना क्वेश्चन पूछ रहा है। स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव, गिल्ट अबाउट क्यूरियोसिटी, हेल्दी ऑटोनॉमी, इंडस्ट्री। तो गिल्ट अबाउट क्यूरियोसिटी, क्योंकि वो बहुत क्वेश्चंस पूछेगा। आपको इस तरीके का बच्चों को एनकरेज करना है कि जितना क्वेश्चंस आप पूछ लो, मगर उसमें आप बोल रहे हो कि सपोज टीचर डांट देता है कि फॉर व्हाट रीजन नॉन नेसेसरली यू आर आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस, okay, and the questions are meaningless one, there is no meaning of the questions. So in this case actually suppose the teacher give punishment to the child, वो guilt about curiosity, okay, guilty feel करता है वो child। option B is the correct answer। question number 29, a teacher encouraging student projects to showcase skills helps resolve। ये टीचर क्या करता है, एनकरेज करता है एक स्टूडेंट को कि आप जो शोकेस किया, जो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, तो बहुत एनकरेज किया, इस तरीके का प्रोजेक्ट आप आगे में और बनाओ। this type of project you make in future so that you get more commendation, you get more praise, you get more reward। तो ये जो है ये जो स्टेज होता है ना, ये इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जितना अच्छा करोगे, ठीक है, आपको इंडस्ट्री पुट हार्ड वर्क, जो स्कूल एज होता है 6 to 12 ईयर्स, ये स्कूल एज है, जितना अच्छा करोगे आपको उतना प्रेज किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, द कॉन्सेप्ट दैट ईच स्टेज बिल्ड्स ऑन प्रीवियस वंस इज कॉल्ड। देखिए 8 स्टेजेस है, एक स्टेज, एवरी स्टेज में क्राइसिस है। जब नेक्स्ट स्टेज को जाता है, प्रीवियस स्टेज का क्राइसिस रिजल्व हो जाता है, सॉर्ट आउट हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट दैट ईच स्टेज बिल्ड्स ऑन प्रीवियस वंस इज कॉल्ड एपिजेनेटिक, साइकोसेक्सुअल, कॉग्निटिव डिजोनेंस, सोशल डिटर्मिनिज्म। तो ये जो है एपिजेनेटिक प्रिंसिपल है कि एक स्टेज के बाद और एक स्टेज आ जाता है इमीडिएटली, और ये जो स्टेज में जो भी क्राइसिस होगा नेक्स्ट स्टेज में वो रिजल्व होता है, सॉर्ट आउट होता है। तो ये एपिजेनेटिक प्रिंसिपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन 30, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थर्ड थ्योरी हो गया एक, और 31 और एक क्वेश्चन है, क्राइसिस रेजोल्यूशन इन लेटर स्टेजेस कैन कॉम्पेंसेट फॉर अर्लियर डिफिकल्टीज थ्रू कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, साइकोथेरापी, एपिजेनेटिक रिपेयर, सोशल रीइंटीग्रेशन। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सोशल रीइंटीग्रेशन। क्राइसिस रेजोल्यूशन इन लेटर स्टेजेस, जो भी ये स्टेज में क्राइसिस है, जो स्कूल स्टेज में क्राइसिस है, वो एडोलेसेंस स्टेज में वो क्राइसिस रिजल्व होता है। तो मेनली सोशल, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस के ऊपर एरिक एरिक्सन उनका साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी एम्फसाइज किया है, सोशल इंटरेक्शन, आप इसको याद रखिए। तो सोशल रीइंटीग्रेशन से क्या है ना, जब नेक्स्ट स्टेज को बचा चला जाता है, उसका जो 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 प्रेजेंट स्टेज में जो क्राइसिस है वो नेक्स्ट स्टेज में वो रिजल्व होता है। तो बेसिकली रीजन इज सोशल रीइंटीग्रेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो अभी नेक्स्ट फोर्थ थ्योरी हम देखेंगे, और एक सोशल लर्निंग थ्योरी, अल्बर्ट बांदुराज सोशल लर्निंग थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी है। अल्बर्ट बांदुराज सोशल लर्निंग थ्योरी, ये सोशल लर्निंग थ्योरी को फर्स्ट याद रखना है, लेटर कॉल्ड सोशल कॉग्निटिव थ्योरी।
तो यहां पर जो बांदुरा ने एम्फासाइज किया, पीपल लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन। आप जितना ऑब्जर्व करोगे आप लर्न करोगे, ऑब्जर्वेशन से लर्न करोगे, फिर आप इमिटेट करोगे, जो भी ऑब्जर्व किया उसको आप इमिटेट करोगे, फिर उसमें क्या होगा ना, रिप्रोड्यूस होगा। आप फर्स्ट ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व से आप उसको इमिटेट किया, इमिटेट करके उसी तरीके का चीज आप बनाया, रिप्रोड्यूस किया, और रिप्रोड्यूस करने से आपको प्रेज मिला तो मोटिवेशन। तो इसमें ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग विथ ए सोशल कॉन्टेस्ट, तो ये तीन चीज के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज किया है सोशल लर्निंग थ्योरी में बांदुरा ने, ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग। ठीक है, ये तीनों चीज के ऊपर वो एम्फसाइज किया है, एक एक हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वन, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये बोल रहा है कि जो पीपल लर्न करता है वो थ्रू ऑब्जर्वेशन ही लर्न करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक गर्ल चाइल्ड ने क्या किया, टीवी में देखा कि एक डिश को देखा, एक आदमी ने वो एक डिश प्रिपेयर कर रहा है। तो एक गर्ल चाइल्ड एक्चुअली सी द पर्सन एक्चुअली प्रिपेयरिंग ए डिश इन टीवी, टेलीविजन में वो देखा कि एक आदमी एक डिश प्रिपेयर कर रहा है। वो गर्ल ने उसको देखा, ऑब्जर्व किया और उसको इमिटेट किया। इमिटेट मीन्स उसको खुद उस तरीके का डिश वो बनाया। जब खुद वो डिश को बनाया वो रिप्रोड्यूस हुआ। जब बनाया तो जब सर्व किया फूड को, सबको अच्छा लगा, अच्छा लगने से उसको प्रेज मिला तो मोटिवेशन मिला, तो वो आगे में और इस तरीके का डिश बनाएगा। तो फर्स्ट ऑब्जर्व किया, उसको इमिटेट करके इस तरीका का, खुद उस तरीका का ऑब्जेक्ट को बनाया, उससे प्रेज मिला, प्रेज मिलने से उसको और मोटिवेशन मिला, तो ये चीज आ जाता है। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट वन अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी एंड अल्बर्ट बांदुरा एम्फसाइज ऑन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, तो पीपल लर्न बाय वाचिंग अदर्स बिहेवियर्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दोज बिहेवियर्स। जो लर्न करते हैं, अदर्स का बिहेवियर को हम देखते हैं, और जो अदर्स का बिहेवियर जैसा होता है हम खुद उसको बिहेव करते हैं। जैसे घर में हम इनफॉर्मल एजुकेशन, हम फर्स्ट फादर मदर का बिहेवियर को डीपली चाइल्ड फॉलो करता है और वो खुद उस तरीके का बिहेव करता है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एक्चुअली फर्स्ट वन एम्फसाइज बाय अल्बर्ट बांदुरा। नेक्स्ट वन, मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या है, इंडिविजुअल्स इमिटेट बिहेवियर्स ऑब्जर्व्ड इन रोल मॉडल्स। आप देखा होगा चाइल्ड का रोल मॉडल मैंने टीचर। ओके, हम मैथ टीचर को पसंद करते हैं, कि साइंस टीचर को पसंद करते हैं, कि सोशल साइंस टीचर को पसंद करते हैं, वो हमारा रोल मॉडल है क्योंकि हम डीपली उनको ऑब्जर्व करते हैं। वो जैसा भी उनका जो स्टाइल है, स्टाइल ऑफ वॉकिंग, स्टाइल ऑफ इंटरेक्शन, स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, हम उस द चाइल्ड उसको डीपली फॉलो करता है, वही है मॉडलिंग। तो चाइल्ड फॉलो पेरेंट्स, फॉलो उसका जो एक पीयर्स होता है, उसका एक फ्रेंड होता है, उसको वो फॉलो करता है, मीडिया फिगर्स। तो ये मॉडलिंग, सेकेंड चीज बांदुरा ने एम्फसाइज किया, मॉडलिंग। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, ये जो थर्ड वन है, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, इसको एम्फसाइज किया है अल्बर्ट बांदुरा ने। इसमें क्या है, तीन चीज आते हैं, बिहेवियर। देखिए तीन चीज दिया है यहां पर, पर्सनल फैक्टर्स। देखिए तीन चीज होता है, एक है जो रेसिप्रोकल बिहेवियर, और एक है जैसे पर्सनल फैक्टर्स, थर्ड वन है एनवायरमेंट। ये तीनों इंटरलिंक है, पर्सनल फैक्टर्स, ठीक है, पर्सनल फैक्टर्स और है एनवायरमेंट। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। इसमें क्या है, सपोज एक पर्सनली वो डिसाइड किया, इंडिविजुअली एक पर्सन ने डिसाइड किया मुझे स्विमिंग करना है, मुझे स्विमिंग सीखना है। कि एक चाइल्ड ने डिसाइड किया मुझे एक स्विमर बनना है। वो तो जब जब गया वो स्विमिंग सीखने के लिए, वहां पर जो उसका जो कलीग्स थे, जो स्विमिंग कलीग्स थे, वो बताए कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करो, आप अच्छा फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो उसमें आपका स्टैमिना बढ़ेगा और आप ज्यादा टाइम स्विम कर सकते हो। तो ये जो फिजिकल एक्टिविटी के बारे में उसको बोला गया, वो एनवायरमेंट है। ठीक है, वो एनवायरमेंट है। तो फर्स्ट वन पर्सनल फैक्टर, पर्सनली क्या है, वो डिसाइड किया चाइल्ड कि मैं स्विमिंग करूंगा। ठीक है, और वो स्विमिंग सीखने के लिए गया, उसका कलीग ने क्या बोला, आपको आपका स्टैमिना फर्स्ट इंप्रूव करना है, तो स्टैमिना को इंप्रूव करना है तो आपको एक फिजिकल एक्सरसाइज करना है। तो फिजिकल एक्सरसाइज क्या आ गया, एनवायरमेंट का बात आ गया। ठीक है, तो वो फिजिकल एक्सरसाइज करने लगा, फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद उसका स्टैमिना बढ़ गया और वो बाकी अच्छा स्विमिंग करने लगा। तो ये तीनों बहुत इंटरेक्ट जो बिहेवियर है, एक पर्सनल फैक्टर है, एक एनवायरमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तीनों चीज। जैसे वो पर्सनल फैक्टर डिसाइड किया मुझे स्विमिंग करना है, और उसका कलीग ने बताया स्टेमिना डेवलपमेंट करने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो वो एनवायरमेंट हो गया, दोनों चीज हो गया। और वो बाकी उसको वो उस तरीके से बिहेव किया, जब उसका स्टेमिना बढ़ गया, वो अच्छे से स्विमिंग किया, ज्यादा टाइम स्विमिंग किया, तो वो उसमें उसका बिहेवियर एक्चुअली आ गया। तो ये तीनों चीज बहुत इंटरेक्ट होता है, बिहेवियर, पर्सनल फैक्टर्स, एनवायरमेंट। वही है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म जो बांदुरा ने एम्फसाइज किया है। ठीक है, और एक है टर्म एम्फसाइज सेल्फ एफिकेसी, कि आपका एबिलिटी के ऊपर आपका बिलीव होना चाहिए, आपका एबिलिटी के ऊपर आपका बिलीव होना चाहिए, वही सेल्फ एफिकेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू मस्ट बिलीव ऑन योर एबिलिटी। ठीक है, और वही आपको, जब आपका एबिलिटी के ऊपर आपका बिलीव है तो आपको वो मोटिवेट करेगा और उस तरीके से आप बिहेव करोगे। और नेक्स्ट वन है एक फिफ्थ वन, एक बढ़िया टर्म है विकारियस रीइंफोर्समेंट। क्योंकि यहां पर देखिए, जो इसको बोलते हैं, ये जो बांदुरा का थ्योरी है ना, इसको बोलते हैं विकारियस लर्निंग। क्योंकि एक इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है। इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस क्या है? ऑब्जर्वेशन से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ऑब्जर्व करने के बाद उस तरीके का बिहेव कर रहे हो, वही है विकारियस लर्निंग, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। आप मॉडलिंग, किसको आप रोल मॉडल मान रहे हो, वो जैसा कर रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है, आप एक टीचर को रोल मॉडल करो कि सर जैसे उनका कम्युनिकेशन स्किल है, उनका फेशियल अपीयरेंस है, मैं उसको डीपली फॉलो करूंगा। तो एक इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस, वही है विकारियस लर्निंग। तो उसमें जो विकारियस रीइंफोर्समेंट है, तो आप ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्विंग अदर्स, ऑब्जर्व करने के बाद आप उस तरीके का बिहेव किया, उसमें आपको प्रेज मिला, तो वही है विकारियस रीइंफोर्समेंट। तो आप ऑब्जर्व किया और उस तरीके से बिहेव किया, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो वो रीइंफोर्समेंट होगा। ठीक है, तो बांदुरा का एक बोबो डॉल होता है। बोबो डॉल क्या है? वो टीवी में देखा, एक बॉक्सिंग मैच चल रहा है। ठीक है, वो एक डॉल को पकड़ा था और बॉक्सिंग मैच देख रहा था, कि एक वो जैसे ये मैच देख रहा था, जो हमारा WWF का मैच देख रहा था, तो वो देख रहा था, बॉक्सिंग मैच देख रहा है कि WWF के मैच में देख रहा है फाइटिंग। तो उस तरीके से वो जो डोल पकड़ा था उसके ऊपर वो उस तरीके से बिहेव किया, उसको पंच किया। तो वही है ऑब्जर्वेशन, आप जो ऑब्जर्व करोगे उस तरीके से बिहेव करोगे। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है, आप उसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, मॉडलिंग, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म में बताया, पर्सनल फैक्टर, बिहेवियर एंड एनवायरमेंट, ऑल थ्री आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। सेल्फ एफिकेसी, एबिलिटी ऑन योर, इट मींस बिलीफ ऑन योर एबिलिटी, सो दैट वो आपको मोटिवेट करेगा, आप उस तरीके से अच्छा बिहेव करोगे। और एक विकारियस रीइंफोर्समेंट, आप खुद डीप ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने के बाद उस तरीके का बिहेव करो जिसमें आपको प्रेज मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो अभी उसके ऊपर हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ बांदुरा सोशल लर्निंग थ्योरी? लर्निंग थ्रू रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट ओनली, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन ऑफ अदर्स, लर्निंग थ्रू जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस, लर्निंग थ्रू अनकॉन्शियस मोटिव्स, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन ऑफ अदर्स। तो इसमें मैं बता रहा हूं, आप जो ये मॉडल है, आप फर्स्ट आप ऑब्जर्व किया। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से आप इमिटेशन आ गया, इमिटेशन आ गया, इमिटेशन से रिप्रोड्यूस हुआ, रिप्रोड्यूस से आपको क्या मिला? मोटिवेशन मिला। ठीक है, ये इसको आपको ध्यान देना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया था, एक गर्ल चाइल्ड ने वो टीवी में देखा कि एक आदमी वो एक डिश प्रिपेयर कर रहा है, वो डीपली ऑब्जर्व किया, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाला जाएगा तो डिश का टेस्ट अच्छा होगा, उसका फ्लेवर अच्छा होगा। वो उसको डीपली इमिटेट करके उस तरीके का डिश बनाया, उसको डीपली फॉलो किया, तो इमिटेशन आ गया। तो उस तरीके का डिश वो प्रोड्यूस किया, प्रिपेयर किया, रिप्रोडक्शन हो गया। और उसके बाद उसको सर्व किया वो फूड को, और सब उसको प्रेज किए कि फूड जो टेस्ट है, उसका फ्लेवर है, बहुत अच्छा है। तो उसमें उसको और मोटिवेशन मिला कि आगे में मैं और अच्छा अच्छा डिश बनाऊंगा। तो ये जो सोशल लर्निंग थ्योरी एक्चुअली रिलेट करता है। ठीक है, 33 को चलेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स विकारियस रीइंफोर्समेंट? मैं अभी बताया था विकारियस रीइंफोर्समेंट, आप डीपली ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व जो किया, आप उस तरीके का जो ऑब्जर्व करने के बाद आप इस तरीके का बिहेव किया और आपको प्रेज मिला, आपको कमेंडेशन मिला, आपको रिवॉर्ड मिला, तो वही है विकारियस रीइंफोर्समेंट। इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस आप लिया, आप एक चीज को ऑब्जर्व, डीपली ऑब्जर्व किया
और ऑब्जर्व करने के बाद उसको उस तरीके का बिहेव किया, उस तरीके का बिहेव करने के बाद आपको प्रेज मिला और रिवॉर्ड मिला, वही है विकरियस रीइंफोर्समेंट। तो डायरेक्टली एक्सपीरियंसिंग ए रिवॉर्ड फॉर ए बिहेवियर, नो। ऑब्जर्विंग समवन एल्स बीइंग रिवॉर्डेड फॉर ए बिहेवियर एंड देन इमिटेटेड इट, यही है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इग्नोरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस, लर्निंग ओनली थ्रू ट्रायल एंड एरर, यही है। ऑब्जर्विंग समवन एल्स बीइंग रिवॉर्डेड फॉर ए बिहेवियर एंड देन इमिटेटिंग इट। आप देखा एक पर्सन को ऑब्जर्व किया और वो जो बिहेव कर रहा है उसमें उसको रिवॉर्ड मिल रहा है और आप उसको इमिटेट कर रहे हो कि मैं उस तरीके का बिहेव करके मुझे भी रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये विकरियस रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट वाज द की फाइंडिंग ऑफ बांदुराज बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। बोबोडोल एक्सपेरिमेंट में बताया था कि वो बच्चा बॉक्सिंग मैच देख रहा था और एक डोल पकड़ा था। बॉक्सिंग मैच को देखकर वो जो डोल के ऊपर पहुंच किया, उस तरीके का बिहेव किया। ठीक है, अग्रेसिवली वो डोल को पहुंच किया। ठीक है, तो वही है बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। तो वो जैसा ऑब्जर्वेशन होगा उस तरीके का आपका बिहेव होगा। तो चिल्ड्रन इग्नोर्ड अग्रेसिव बिहेवियर अनलेस पनिश्ड, चिल्ड्रन imitated aggressive behavior they observed in adults, reinforcement was unnecessary for learning, only verbal instructions influence behavior। second one, children imitated aggressive behavior they observed in adults, ये अभी मैं बताया था जो बॉक्सिंग मैच रिलेटेड में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग टू बांदुरा व्हाट डज सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी मींस आप खुद को बिलीव करो, एबिलिटी, इट मींस बेसिकली बिलीफ ऑन योर ओन एबिलिटी, ओन एबिलिटी के ऊपर आपका बिलीफ होना चाहिए। ओके, इफ यू आर हैविंग एबिलिटी ऑन योर ओन बिलीफ, देन you give the best and you get praise and commendation and it motivate you to do the same type of thing in future। तो ऑप्शन ए, the beliefs in one abilities to succeed in specific situations, ऑप्शन ए is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन। बांदुरास थ्योरी में बताया था रेसिप्रोकल में एक है बिहेवियर आ जाता है और एक आ जाता है पर्सनल फैक्टर्स आ जाता है। मैं इसको डिस्कस किया था एग्जाम्पल में, पर्सनल फैक्टर्स आ जाता है और एक एनवायरमेंट, ये तीनों इंटरलिंक अमंग ईच अदर। ठीक है, यही है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। तो आप पर्सनल फैक्टर, जैसे आप मैं एग्जांपल दिया कि आप स्विमिंग, एक बच्चा ने क्या किया, उसका मेन जो एम गोल है वो स्विमिंग है। ठीक है, तो वो पर्सनली डिसाइड किया कि मुझे स्विमिंग में जाना है। तो वो जब स्विमिंग सीखने के लिए गया, उसका कलीग ने बोले कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है आपका स्टैमिना को प्रमोट करने के लिए, आपका स्टैमिना प्रमोट होगा तो आप अच्छा स्विमिंग कर सकते हो। ठीक है, तो पर्सनल फैक्टर हो गया, डिसाइड किया पर्सनली, इंडिविजुअली वो डिसाइड किया मुझे स्विमिंग में जाना है। और बाकी वो जब गया तो उनका जो कलीग्स एक्चुअली बोल दिए कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है, वो फिजिकल एक्टिविटी किया, वो एनवायरमेंट है। और उसके बाद वो जब फिजिकल एक्टिविटी किया और उसका स्टैमिना इंप्रूव हुआ, तब वो उसका बिहेवियर ठीक रहा, वो ज्यादा समय स्विमिंग करने लगा। तो यही है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। तो यहां पर हम देखेंगे कि ऑप्शन बी, बिहेवियर, पर्सनल फैक्टर्स एंड एनवायरमेंट कंटिन्यूअसली इन्फ्लुएंस ईच अदर, continuously interlink among each other, simultaneously all the three work actually in right direction, option B is the correct answer। question number 37, which of the following is not a component of observational learning in Bandura's theory? attention, retention, motivation, genetic inheritance, ये नहीं, option D is the correct answer, is not a component। तो जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, फर्स्ट अटेंशन, आप बहुत अटेंशन देकर ऑब्जर्व किया, फिर उसको रिटर्न किया ब्रेन में, और उसको रिटर्न करने के बाद उसको इमिटेट किया, और इमिटेट करने के बाद रिप्रोड्यूस किया, उस तरीका का चीज बनाया और आपको प्रेज मिला, प्रेज मिला मीन्स मोटिवेशन। तो फर्स्ट आप अटेंशन, अटेंशन के बाद आप ब्रेन में रखा रिटेंशन, देन उसको इमिटेशन, उसको फॉलो किया, जो आप ऑब्जर्व किया उस तरीके का चीज आप बनाया, रिप्रोड्यूस किया, और रिप्रोड्यूस करने के बाद आपको प्रेज मिला, वही मोटिवेशन। जेनेटिक इनहेरिटेंस नहीं है, ऑप्शन डी यहां पर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, इन बांदुराज मॉडल व्हाट इज नेसेसरी फॉर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, व्हाट इज नेसेसरी फॉर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग टू अकर? ओनली पनिशमेंट, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, अनकॉन्शियस ड्राइव्स, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन अलोन, ऑप्शन बी, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। इसको मैं एग्जाम्पल में डिफाइन कर चुका हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
39. How does Bandura's theory differ from Skinner's behaviorism? Bandura emphasizes internal mental process while Skinner focuses only on external reinforcement. Bandura rejects the idea of learning altogether. Skinner includes cognitive factors while Bandura does not. There is no significant difference. Option A is the correct answer. बांद्रा एम्फासाइज इंटरनल मेंटल प्रोसेस को एक्चुअली बांद्रा एम्फासाइज किया है, जो स्किनर ने फोकस किया है एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट. स्किनर का थ्योरी मेरा नेक्स्ट पार्ट में आएगा. तो यहां पर जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अभी कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज के ऊपर जाएंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज. अभी 11 एमसीक्यूज बाकी है. आप थोड़ा ब्रीफली देख लीजिए क्या क्या एलडीज है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है, थोड़ा देख लेंगे. फर्स्ट वन डिसलेक्सिया, रीडिंग डिसेबिलिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है. डिसलेक्सिया, रीडिंग डिसेबिलिटी, प्राइमरी चैलेंजेस क्या है ना? डिफिकल्टी विथ रीडिंग, स्पेलिंग एंड डिकोडिंग वर्ड्स. ठीक है, तो मेनली डिफिकल्टी विथ रीडिंग जो है डिसलेक्सिया. सिम्टम स्लो इनएक्यूरेट रीडिंग, ट्रबल रिकॉग्नाइजिंग साइट वर्ड्स, पुअर स्पेलिंग एंड राइटिंग, मिक्सिंग अप सिमिलर लेटर्स. बी डी वो सिमिलर सोचता है, तो ये है सिम्टम्स. ठीक है, तो रीडिंग डिसेबिलिटी ये है. नेक्स्ट को चलेंगे डिसग्राफिया. डिसग्राफिया बेसिकली राइटिंग डिसेबिलिटी है. वो तो बोल सकता है, उसका एबिलिटी टू स्पीक बट अनएबल टू राइट. तो राइटिंग डिसेबिलिटी. प्राइमरी चैलेंजेस क्या है? डिफिकल्टी विथ हैंड राइटिंग, स्पेलिंग एंड राइटिंग. ऑटोमेटिकली आप हैंड राइटिंग नहीं होगा तो स्पेलिंग एरर होगा और रिटन एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम आएगा. सिम्टम्स इलिजिबल और इनकंसिस्टेंट हैंड राइटिंग, ट्रबल ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स ऑन पेपर. जो आपका थॉट्स है आप पेपर में प्रेजेंट नहीं कर पाते हो. स्लो राइटिंग स्पीड, पुअर ग्रामर एंड पंक्चुएशन. आप जितना राइटिंग करोगे आपका जो स्पेलिंग एरर नहीं होगा और आपका जो कंस्ट्रक्शन, जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होगा वो सही तरीके से होगा. ठीक है, मगर ये यहां पर प्रॉब्लम यही है कि राइटिंग डिसेबिलिटी है. ठीक है, तो स्पेलिंग एरर होगा, राइटिंग एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम होगा. तो ये डिसग्राफिया है, राइटिंग डिसेबिलिटी. ठीक है, सेकंड वन. थर्ड वन डिसकैल्कुलिया, मैथ डिसेबिलिटी. जैसे कंप्यूटेशन है कि न्यूमर जो स्किल्स है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इसमें वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है. और उसमें प्राइमरी चैलेंजेस डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग नंबर्स एंड मैथ कॉन्सेप्ट्स. उसका मेमोराइजेशन डिफिकल्टी, जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है उसको वो रिमेंबर नहीं कर पाता है. डिफिकल्टी टेलिंग टाइम और काउंटिंग मनी, वो टाइमिंग सही से बता नहीं पाता है कि मनी काउंट नहीं कर पाता है. पुअर नंबर सेंस, एस्टिमेशन, सीक्वेंसिंग, उसमें उसका प्रॉब्लम होता है. कंफ्यूजन विथ मैथ सिंबल्स. तो ये मैथमेटिकल डिसेबिलिटी, ना मनी ठीक से काउंट कर पाता है, ना टाइम ठीक से बता पा रहा है, ना मल्टीप्लिकेशन टेबल को रिमेंबर कर पा रहा है, ना सिंबल को ठीक से वो डिटेक्ट कर पा रहा है. कौन सा डिवीजन का क्या सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन का क्या सिंबल है, सब्ट्रैक्शन का क्या सिंबल है. ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम आ जाता है. ठीक है, ये डिसकैल्कुलिया, मैथ डिसेबिलिटी. फोर्थ वन एक है एपीडी, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर. ऑडिटरी मीन्स वो जो जब स्पीच होता है वो सुनता है, उसमें वो सही तरीके से स्पीच को ग्रास्प नहीं कर पाता है. तो प्राइमरी चैलेंज डिफिकल्टी इंटरप्रेटिंग साउंड्स, स्पेशली स्पीच. वो जो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है वो स्पीच को सही तरीके से ग्रास्प नहीं कर पाता है कि स्पीच किस किस चीज के ऊपर एम्फसाइज कर रहा है, वो उसको ग्रास्प नहीं कर पाता है. तो ट्रबल फॉलोइंग वर्बल इंस्ट्रक्शंस, मिसहियरिंग वर्ड्स, कैट को वो क्या सुन रहा है. स्ट्रगल्स विथ रीडिंग एंड स्पेलिंग ड्यू टू साउंड कंफ्यूजन. साउंड कंफ्यूजन से वो रीडिंग स्पेलिंग उसका स्ट्रगल कर रहा है. ठीक है, तो ये सब ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है. फोर्थ वन. फिफ्थ वन को चलेंगे विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर. इसमें डिफिकल्टी इंटरप्रेटिंग विजुअल इंफॉर्मेशन. कुछ विजुअल इंफॉर्मेशन में प्रॉब्लम होता है, ट्रबल होता है. जैसे डिस्टिंग लेटर्स और वर्ड्स, डिस्टिंग्विशिंग लेटर्स और वर्ड्स. वाज को वो सॉ उसको दिखाई देता है, जैसे वाज लिखा है ब्लैक बोर्ड में उसको दिखाई देता है सॉ. पुअर स्पेशियल अवेयरनेस, बम्पिंग इनटू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो पुअर है, वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, वो उसको ठीक से विजुअली उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, बोर्ड से ठीक से कॉपी नहीं कर पा रहा है. तो ये विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में आ जाता है, वीपीडी में. ठीक है. सिक्स्थ वन नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी. वर्बल तो वर्ड्स के ऊपर है, नॉन वर्बल लर्निंग. नॉन वर्बल मीन्स एक्चुअली
इसमें कुछ जैसे हैंडशेक होता है, कि नडिंग होता है, ठीक है, कि टैपिंग द आर्म, ये सब होता है जो बेसिकली हिंट्स में होता है, नॉन वर्बल। तो वहां पर वो नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी प्रॉब्लम है, वो नॉन वर्बल चीज को वो ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पाता है। कोई उसको टंटिंग कर रहा है चाइल्ड को, सरकजम टाइप वो कर रहा है, मगर वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। प्राइमरी चैलेंज डिफिकल्टी विद नॉन वर्बल क्यूज, मोटर स्किल्स एंड स्पेशल रीजनिंग। स्ट्रॉन्ग वर्बल स्किल्स बट पुअर सोशल अंडरस्टैंडिंग। वर्बल स्किल्स अच्छा है, वो वर्ड्स बेसिकली वर्ड्स को अच्छे से वो डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, मगर पुअर सोशल अंडरस्टैंडिंग उसका पुअर है, ठीक है। जो हिंट्स होता है ना, एक एक हिंट्स होता है सोशल, जैसे आपको कोई टैपिंग कर दिया, इट मीन्स आपको एनकरेज किया, तू कर पाएगा, आपका आर्म को टैप कर दिया, आपको हैंडशेक किया, ये हैंडशेक मीन्स आपको वो रेस्पेक्ट दिया, इस तरीके का चीज को वो डिटेक्ट ठीक से नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें, क्लमजीनेस एंड पुअर, उसका जो मूवमेंट कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मोटर स्किल्स का बात आता है ना, उसका मूवमेंट कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होता है, मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है, क्लमजीनेस एंड पुअर कोऑर्डिनेशन। ट्रबल रीडिंग बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, कि जो रीडिंग बॉडी लैंग्वेज है, वो सब इसमें ट्रबल आता है। तो ये चीज को थोड़ा है। 6th वन, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, एनवीएलडी। नेक्स्ट वन, डिस्प्रैक्सिया, ये मोटर स्किल्स प्रॉब्लम है, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, ठीक है। उसमें जो मूवमेंट एक कोऑर्डिनेशन होता है, मूवमेंट कोऑर्डिनेशन, इसमें प्रॉब्लम है, ओके। डिस्प्रैक्सिया, मोटर प्लानिंग, जैसे वो वॉकिंग है, रनिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका मूवमेंट ही प्रॉब्लम है, मूवमेंट कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है। पुअर हैंड राइटिंग है, क्योंकि मैं वही बताया ना, राइटिंग है, रनिंग है, वॉकिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, इसमें प्रॉब्लम आता है। ट्रबल विथ बैलेंस, बैलेंस में ट्रबल है, वो शूलेस को ठीक से टाई नहीं कर पा रहा है, बाइक को राइड नहीं कर पा रहा है, बाइसाइकिल को राइड नहीं कर पा रहा है, स्विमिंग नहीं कर पा रहा है, रनिंग नहीं कर पा रहा है। स्पीच आर्टिकुलेशन डिफिकल्ट, स्पीच जो बोल रहा है ना, उसमें बहुत डिफिकल्टीज है, कोई एक वर्ड है और उसको और कोई वर्ड बोलता है, और कोई एक सेंटेंस को स्किप कर जाता है, ठीक है। ये सब चीज डिस्प्रैक्सिया, बेसिकली मोटर स्किल्स में जो प्रॉब्लम आता है। और लास्ट वन है लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, प्राइमरी चैलेंज डिफिकल्टी अटैचिंग मीनिंग टू स्पोकन लैंग्वेज, जो स्पीकिंग में प्रॉब्लम है। ट्रबल फॉलोइंग स्टोरीज और कन्वर्सेशंस, लिमिटेड वोकेबुलरी, डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग थॉट्स वर्बली, जो उसका थॉट से थिंकिंग है उसको एक्सप्रेस ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो ये 8 लर्निंग डिसऑर्डर्स के ऊपर बताया, उसके ऊपर थोड़ा कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी? Specific learning disability, low intelligence, neurological differences in processing information, lack of educational opportunities, behavioral problems. तो ऑप्शन बी, न्यूरोलॉजिकल डिफरेंसेस इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये मेनली प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मींस जो न्यूरोलॉजिकल डिफरेंसेस जो होता है, नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 41, which term refers to difficulty in reading that is neurological in origin? Difficult in reading means dyslexia. Reading, difficult in reading, dyslexia. Difficult in handwriting, dysgraphia. Calculation, maths disability, dyscalculia. मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम है, डिस्प्रैक्सिया। ये सब चीज को थोड़ा ध्यान देना है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 42, a student who frequently reverse letters B, D and struggles with phonics. तो रिवर्सेस लेटर्स, एक्चुअली वो बी को डी समझता है, डी को बी, बी डी में वो डिफरेंस नहीं कर पाता है, तो वही डिसलेक्सिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि रीडिंग रिलेटेड है, रीडिंग रिलेटेड है, तो ऑप्शन सी। 43, ए चाइल्ड हु कैन अंडरस्टैंड एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स बट स्ट्रगल्स विथ बेसिक मैथ्स फैक्ट्स। एडवांस कॉन्सेप्ट को समझ लेता है, मगर बेसिक मैथ जैसे मल्टीपल टेबल को वो रिमेंबर नहीं कर पाता है, सिंपल कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, और जो मैथमेटिकल सिंबल्स है उसको ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, तो ये डिसकैलकुलिया, ये जो लर्निंग डिसऑर्डर है वो डिसकैलकुलिया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसकैलकुलिया?
डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग क्वांटिटीज, ट्रबल मेमोराइजिंग मैथ फैक्ट्स, पुअर स्पेलिंग स्किल्स, चैलेंजेस विद टेलिंग टाइम। तो यहां पर ये कैरेक्टर डिसकैलकुलिया का जो ऑप्शन सी है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, पुअर स्पेलिंग स्किल्स नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द प्राइमरी चैलेंज इन डिसग्राफिया? डिसग्राफिया हैंडराइटिंग प्रॉब्लम होता है, तो डिफिकल्टी विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ट्रबल फॉर्मिंग लेटर्स एंड ऑर्गेनाइजिंग रिटन थॉट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथ इक्वेशंस, इनएबिलिटी टू स्पीक क्लियरली। तो ऑप्शन बी, ट्रबल फॉर्मिंग लेटर्स एंड ऑर्गेनाइजिंग रिटन थॉट्स, जो उसका थॉट्स है उसको ठीक से वो राइटिंग में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वही है डिस्ग्राफिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 46, एक्चुअली डिफिकल्टी विथ फाइन मोटर स्किल्स लाइक बटनिंग शार्ट्स, जो शार्ट बटन सजेस्ट एक्चुअली मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम है, डिस्प्रैक्सिया, ठीक है, ये डिस्प्रैक्सिया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 47, ए स्टूडेंट हु टॉक्स वेल बट डज नॉट अंडरस्टैंड सरकाजम लाइकली, वो ठीक से इट मीन्स वो जो टॉकिंग है वो ठीक है, मगर वो कोई उसको टॉन्टिंग रिमार्क्स कुछ हिंट्स दे रहा है, कोई टॉन्टिंग रिमार्क्स, कोई जाइविंग रिमार्क, ये सब दे रहा है, वो उसको समझ नहीं पा रहा है। तो इस तरीके का चीज को हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर जो 47 है, एनवीएलडी, नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर। नॉन वर्बल मीन्स हिंट्स, वर्बल मीन्स वर्ड्स आता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रॉन्ग वर्बल है, मगर नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर। नॉन वर्बल केस में क्या है, जो हिंट्स है वो उसको ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, कोई उसको टंटिंग कर रहा है मीन्स उसको मिमिक कर रहा है मीन्स कुछ ना कुछ हिंट्स दे रहा है, वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, तो एनवीएलडी, नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 48, which is the characteristics of NVLD, non-verbal learning disorder? Strong verbal skills, poor social skills, motor clumsiness, all of the above। ये कैरेक्टर एनवीएलडी का ऑल ऑफ द अबव होगा। वर्बल स्किल स्ट्रांग है, सोशल स्किल्स पुअर है, ठीक है, पुअर, क्योंकि कभी कभी क्या है हिंट्स में, सपोज कोई आपको हैंडशेक कर दिया, आपको नमस्कार नहीं किया डायरेक्टली, आपको हैंडशेक कर दिया, वही तो रेस्पेक्ट है। कोई आपका आर्म को टैप कर दिया तो आपको एनकरेज किया, तो ये सब वर्बल, ये इसको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। मोटर क्लमजीनेस है, क्योंकि जो मूवमेंट कोऑर्डिनेशन जो होता है उसमें प्रॉब्लम है, जैसे वो राइटिंग है, साइकिलिंग, राइडिंग, रनिंग, इसमें, और उसका जब वो राइटिंग करता है उसका हैंड शेक करता है, तो ये सब है मोटर क्लमजीनेस, वही है, ऑल ऑफ द अबव होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 49 को चलेंगे, व्हिच अकोमोडेशन हेल्प्स मोस्ट विथ एपीडी, जो ऑडिटरी प्रोसेस डिसऑर्डर, ऑडिटरी प्रोसेस डिसऑर्डर, एक्स्ट्रा टाइम ऑन टेस्ट, प्रिफरेंशियल सिटिंग, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर, कैलकुलेटर यूज। प्रिफरेंशियल सिटिंग, क्योंकि जो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, वो जो ऑडिटरी प्रोसेसिंग मीन्स एक्चुअली वो स्पीच को ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, स्पीच में क्या क्या एम्फसाइज, किस तरीके का पॉइंट्स को एम्फसाइज किया जा रहा है, वो उसको ग्रास्पिंग नहीं कर पाता है, तो इसलिए प्रिफरेंशियल सिटिंग वो इंपॉर्टेंट है, उसको सिटिंग जो स्ट्रक्चर होगा फ्रंट लाइन में होना चाहिए उसका सिटिंग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, accommodation for learning disabilities include, accommodation for learning disabilities, extra time, speech to text, both, neither, both होगा, extra time और speech to text। जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है अकोमोडेट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए और स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहिए, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज इतना ही था, आज 4 थ्योरी और लर्निंग डिसेबिलिटीज के ऊपर मैं डिस्कस किया। आप मेरा पार्ट 2 को वेट कीजिए, उसमें और अच्छा थ्योरी को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। आज इतना ही है, थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू अगेन।